Hi everyone, welcome to Go Classes. This is live doubt session for propositional logic. In propositional logic, if there is any doubt, you can ask in this session. You can turn on your mic and you can talk to me. You can ask your doubts. Okay. So don't keep any doubt to yourself. Whatever doubt you have in the propositional logic, you can ask in this session. Also, let me tell you, if you do not have any doubt, then I think this session is not helpful for you because this is basically the doubts of the students. I'm not going to teach any concept. I'm not going to take any new questions from my side. I will only take the students' doubts. Okay, if you have doubt in any topic, in any concept, in any question, if there is any doubt in the propositional logic, you can ask and I will answer that doubt. Okay. If you are watching this video in the recorded format, then maybe this session is not helpful for you because this is only for the doubts of the students. Okay. So one by one, I will take the doubts. You can raise your hand and I will take all your doubts one by one. Okay. So you can raise your hand and I will answer I will ask all your doubts. Okay. Abhishek is asking a doubt in a GATE question, in a GATE 2016 question. Abhishek, do you have any particular doubt in this? Consider the following expressions. So this is a doubt that that Abhishek is asking. Is this doubt visible to everyone? One by one, I will take your doubts. Abhishek, yes, you can unmute yourself and you can ask. Let just raise your hand. Abhishek, please raise your hand. Himanshu, I will answer your doubt. If anyone has any doubt, you just raise your hand. One by one, let's discuss all the doubts. Abhishek Tiwari, please raise your hand. You can unmute yourself and you can ask. Abhishek. Sorry, sir, I couldn't release my hand as I'm not being able to locate it. Yes. So in this question, what is your doubt? Sir, my doubt is, sir, can I use Hindi? Yes, you can speak Hindi. बताओ क्या डाउट है? सर सर मैंने बेसिकली क्या किया कि P एंड P इम्प्लाइज Q का एक मैंने आर्गुमेंट बनाया, ओके। हम्म. एंड फिर हाँ. मैंने ना Q P और Q एंड नॉट Q और P इनको ना मैंने कंक्लूजन लेके टेस्ट किया। सो ये हाँ. हाँ. कंक्लूजन्स ना बेसिकली ये आर्गुमेंट वैलिड हो रहा था इनके लिए, तो Q P एंड सब. P और हाँ. सेकंड फोर्थ और फिफ्थ के लिए आर्गुमेंट वैलिड हो रहा था। तो हाँ. ये तो हाँ. इनके कंक्लूजन्स हो जाएंगे। बट सर ट्रू हाँ. और फॉल्स के केस में कैसे टेस्ट करना होगा? Anything implies true. Anything that implies true, that is true. See, this is very simple point. Anything implies true. This expression, this expression is always true. This expression is यस। always true. So remember this argument. If I give you some argument where p1, p2, p3, let's assume these are the premises. Okay, pn, and let's assume the conclusion says true. This is the conclusion. Okay. Now remember हाँ। this complete argument is always valid because what is the reason? Just apply the definition of valid argument. Valid argument means when all the premises are considered to be true, then the conclusion must not be कंक्लूजन false. इज बी ट्रू।
Yes, conclusion must be true, right? You can Yes, see sir. already the conclusion is true. Is it ever possible that you can make them true and this false? Is it ever possible? It is No. never possible because conclusion is already true. Yeah. We can never make the conclusion false. We can never make conclusion false. Conclusion is always true. So this complete argument is always valid. You don't even have to look at this. This even does not matter here. Okay. That was it, sir. Like Okay, मैंने ये understood. miss कर दिया था. So I hope you understood this point, right? Because remember the definition of valid argument. अंडरस्टूड वेरी वेल सर, बहुत सिंपल था ये तो. यस Okay, सर. let me tell you also another thing. See, हाँ. let's assume that this is an argument that is given to you. This is the conclusion. These are the premises. Let's call it argument A. Okay. Now, do you remember what the definition of validity of argument? When we say that this argument A is valid, do you remember this definition that this Yes, sir. argument is valid if and only if this expression that I am giving you, this is tautology. Which expression? Tell me. Yeah. P1, P2 and P1 and P2 P1 and and P2 Pn and something. Yes, very good, implies very good. C. Yes, and Pn implies C if this expression is tautology. Tautology. Yeah. Okay. Do you remember this is the definition of valid argument? Yes, sir. Okay, when we say that argument A is valid if and only if this expression P1 and P2 and Pn implies C, this expression is tautology. Now you can easily see if you have P1, P2 and so on Pn, and let's assume here the conclusion itself is true. Now you It will can be easily see always that tautology. this expression P1 and P2 and Pn, this implies true. This whole expression, look at this whole expression, this is tautology. Yes, sir. This is tautology. Why this is tautology? Because we already know that alpha implies true. This expression is always true. Okay. So that's why this is tautology. And that's why this argument is always valid. This will be always valid. Always valid. Yes, sir. Okay. So when the conclusion is true, when the conclusion is always true, then in that case, the complete argument will be valid. So you can easily see that this definitely will be the answer. Yeah. Okay. From here, one more thing you can see. Any expression alpha always implies true, right? If instead of this P and P implies Q, if anything given to you, if anything X alpha is given to you, then this will always logically imply true, because you can easily see anything this true, this will be Valid. valid. Okay. So very simple. I hope you understood this. Yes, so this was the first question in my PYQs, and the second one was, sir, what is canonical normal form? It's like it was a question of 90s, I guess. Yes. So canonical normal form. Okay, Yeah. CNF. This is the short form, canonical normal form. In digital logic, we study some concepts called POS, SOP. Okay. Yes, sir. Actually, not canonical normal form. Basically, there are two type of canonical normal form. One is canonical conjunctive normal form, and one is And one is disjunctive normal disjunctive. form. Yeah. Okay, D means disjunction, disjunctive, and C means Conjunctive. conjunction. Okay, conjunctive normal form. Okay, so let me tell you that we study in digital logic, this concept will come. Do not worry. In digital logic, this is a very, very extremely easy concept. In digital logic, there is something called POS, product of sum, and SOP, sum of product. Okay, so here actually what happens, see this conjunctive normal form, this is actually same as POS, and this disjunctive normal form, this is same as SOP. These are actually same. This is same as this is same as this. So in digital logic, you will study this concept of POS. So if someone is asking you what is the conjunctive normal form, so that will be same as POS. What is disjunctive normal form? That will be same as SOP. So this concept you will study in the digital logic subject. So for now, in discrete mathematics, in propositional logic, this canonical normal form, this question for now you can skip, and once the digital logic is over, then you can easily solve this question. This is a very easy question. Anything else, Abhishek? No, no, sir. I have solved like all the PYQs. So can I move on to predicate now? Like Yes, of course. predicate I'm already doing. Yes. So maybe tomorrow we will have first order logic or predicate logic doubt session.
or maybe day after tomorrow. Okay, once it is complete, once the first order logic is complete, then we will have the doubt session for the predicate logic, first order logic also. So Okay. you have done the all the PYQs of propositional logic, right, from the Yes. Gate Overflow PDF. Yes, sir. I have the hard copy. You have the hard copy, no problem, hard copy, soft copy, but always remember, always solve the gate PYQs, always solve from the Gate Overflow only. Okay, Okay, sir. so okay, Abhishek. Thank you, sir. Okay, so let me take another doubt. Himanshu, let me. Yes, you can unmute yourself, Himanshu. Namaste, sir. Am I audible? Namaste, Himanshu. Audible, yes. Sir, when we say P is sufficient for Q, Hmm. क्या उसका मतलब ये है कि अगर P होगा भी नहीं तो फिर भी Q हो सकता है? हाँ, हो सकता है. अच्छा. P is sufficient for Q. P is sufficient for Q. इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर P होगा तो Q हो जाएगा, अगर P नहीं होगा तो Q हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये एक सिंपल सा लॉजिकल चीज है, अपनी रियल लाइफ में भी हम बोलते हैं ना कि ये चीजें रियल लाइफ में भी कई बार हम बोलते हैं कि अगर जैसे इस तरह के स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये है तो ये सफिशिएंट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलूं, अगर आपके पास कार है तो आप हम्म, दिल्ली जा सकते हो, कार है तो दिल्ली जा सकते हो, लेकिन जरूरी जी थोड़ी है कि कार होगी तो ही दिल्ली जाओगे, अगर मोटरसाइकिल है तो भी जा सकते हो. जी 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 ठीक है, सर. तो पी सफिशिएंट फॉर क्यू, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इंग्लिश में है, जो हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, ये जी जब हम सर. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स पी इंप्लाइज क्यू. अब आप जी जानते सर. हो कि पी इंप्लाइज क्यू का क्या मतलब होता है. इस ये कब ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब P अगर फॉल्स होता है या Q ट्रू या तो होता पी है? फॉल्स हो या फिर क्यू ट्रू हो. ठीक है, जी सर. ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पी ट्रू हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए. जी सर. है ना. और लॉजिकली सोचो, जब मैं बोल रहा हूं कि P सफिशिएंट है Q के लिए, मैंने बोल दिया कि ये सफिशिएंट है Q के लिए, कि अगर आपने P कर दिया तो P को करना, मान लो P एक जी काम है, ओके, सम वर्क, अगर आपने P को अगर कर दिया तो Q ऑटोमेटिकली हो जाएगा. यही तो बोल रहा हूं मैं, P सफिशिएंट फॉर Q. ठीक है, अब ये फॉल्स कब होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है कि आपने P कर दिया फिर भी Q नहीं हुआ. ठीक है ना. यस तो सर. जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि भाई अगर आपको कोई बोले कि यार पढ़ना इज सफिशिएंट फॉर टॉपिंग गेटिंग अ टॉप रैंक इन द गेट एग्जाम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट जी टू गेट टॉप रैंक इन द गेट एग्जाम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12 घंटे पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए. है जी ना. जी तो सर. इस वजह से, लेकिन लेकिन याद रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर किसी ने 6 घंटे पढ़ के अगर टॉप कर दिया हाँ तो जी इससे सर. फर्क नहीं पड़ता. है ना. जी ये स्टेटमेंट सिंपली बोल रहा है कि अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो आप गेट एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ जाएगी. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी. आपको हमें 12 घंटे पढ़ाई करके गेट में टॉप रैंक नहीं लेना है, तब यस, फॉल्स होगा. तब जाके जी फॉल्स होगा ये. अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करके अगर आपकी टॉप रैंक आ भी जाती है तो भी ये फॉल्स नहीं होगा, और 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपकी टॉप रैंक नहीं आती है तो भी ये फॉल्स नहीं होगा. ये फॉल्स तब होगा जब आप पी को ट्रू करके क्यू को फॉल्स कर दो. जी सर. समझा. समझा ओके, सर. एनी अदर डाउट हिमांशु. नहीं सर, धन्यवाद. सिंपल, बस इतना सा याद रखो कि ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट है, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, इट विल बी ट्रांसलेटेड टू पी इंप्लाइज क्यू इन द प्रोपोजिशनल लॉजिक. एंड यस. रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि इफ आई से पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, ये दिस स्टेटमेंट पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, this English statement will translate as Q implies P in the propositional logic. Okay, so this is the only Okay. thing that I think we have a 50-minute video on only to discuss about these. यस सर. यस Yes. सर. Anything थैंक else? Any other doubt, Himanshu? नो सर. थैंक यू. Okay. Hariom is asking, where can I find PYQ PDF of propositional logic from Gate Overflow? See, on Google, you just put Gate Overflow PDF. ओके, बस एक सिंपल सा गूगल सर्च करो, उसमें लिखो गेट ओवरफ्लो पीडीएफ, गूगल पे ये लिख दो. उसके बाद में एक गिटहब का लिंक आएगा. ओके, उस गिटहब के लिंक पे जाओ और वहां से गेट पीवाईक्यूज की दो पीडीएफ हैं, गेट ओवरफ्लो की गेट पीवाईक्यूज की दो, एक तो वॉल्यूम 1, एक वॉल्यूम 2. इसमें वॉल्यूम 1 के अंदर आपको डिस्क्रीट मैथ्स आपको इसमें मिल जाएगा, और उसमें आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक मिल जाएगा. ओके, और एनीवन कैन प्रोवाइड द लिंक. Hariom is asking for the link. If anyone can please like Google and please provide it. Yes.
So Abhishek has shared the link of Go PDF. Okay. Yes. Praveen also has shared. Okay. So you can see. Let me take the screenshot and let me put here. You can see these you can easily find. Okay. And let me tell you, each and every gate PYQ you must solve from Go PDF only. Okay, each and every gate PYQ from the Go PDF on internet, on Google. You can just put gate or for PDF. This GitHub link will come, as I told you. This GitHub. Okay, GitHub link will come, and then there you can find volume 1, volume 2. They will contain all the subjects. Okay, they contain all Gate CS PYQs, Gate CS previous year questions. Okay. So you can see in the volume 1 there is discrete mathematics, propositional logic. So you can just do a Google search, and the link you can easily see. Praveen and Abhishek has shared. Okay. Any other doubt? Anyone? Hello, Priyanshu. Hello, sir. Sir, namaste, sir. Namaste, Priyanshu. Sir, actually, I have some doubts in some questions like puzzle solving questions. Like in the quiz, we have one knight and knave questions. However, I have solved it, but I want to post one question of puzzle solving, sir. Please. You can send me the question in the chat. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will provide this link in the description also. In the pinned comment in the description, I will provide this link also. Okay. The Go PDF, Gate or for PDF link I will provide in the description. So Priyanshu is asking, yes, there is a puzzle. Let me take it. Okay. Hello, Priyanshu. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, it is not, sir, approachable नहीं लग रहा है सर मतलब थोड़ा सा अप्रोचेबल नहीं लग रहा है। आपने सर इसका वीडियो स्टार्ट सॉल्यूशन देखा? इसका वीडियो सॉल्यूशन दिया होगा मैंने। सर वीडियो सॉल्यूशन में सर केस बेस था लेकिन सर वो भी सर आपने वही चीज वहीं से स्टार्ट क्यों किया सर वो समझ नहीं आया सर मतलब वहीं से स्टार्ट क्यों किया? देखो मतलब ओके, चलो थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर यस मेरे सर यस सर सामने ये थॉट प्रोसेस चाहिए था थॉट प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि अगर ये मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक है? मैं यस सर इसको आराम से पढ़ूंगा। एक तो कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलर पजल। ये किसी स्टैंडर्ड बुक से मैंने ली है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। यस अ सर बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग। वन ऑफ देम हैज ब्लैक हेयर, अनदर वन हैज वाइट हेयर। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें नहीं यस पता सर किसके ब्लैक हेयर हैं किसके वाइट हेयर हैं। यस सर आई एम अ बॉय, सेड द चाइल्ड विद ब्लैक हेयर। जिसके ब्लैक हेयर हैं वो बोल रहा है मैं बॉय हूँ। यस सर जिसके वाइट हेयर हैं वो बोल रहा है कि मैं गर्ल हूँ। यस एंड सर ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग। विच ऑफ देम इज लाइंग? पहले तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं पहले तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसको मुझे ट्रू अज्यूम करना है, जिस इंफॉर्मेशन यस को ट्रू अज्यूम करना है, पहले तो वो मैं लिख देता हूँ। सर पहली बात तो कि एक बॉय है, एक गर्ल है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है? चलो यस सर इसको इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास में दो हैं, एक ए है एक बी है, या फिर ए पी कोमा क्यू ले लो, ठीक है? दो दो चाइल्ड हैं। अब मुझे नहीं पता इनमें से बॉय कौन सा है, उनमें से गर्ल कौन सा है। एक चीज का पक्का पता है कि इनमें से एक बॉय है एक गर्ल है, ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, ठीक है? यस सर दीज आर द टू चाइल्ड। ओके। हाँ। नाउ सेकंड चीज आपको जो दे रखी है वो है कि आई एम अ बॉय, जिसके अ बॉय गर्ल टॉकिंग टू ईच अदर, वन ऑफ देम हैज ब्लैक हेयर एंड अनदर हैज व्हाइट। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इनमें से एक के ब्लैक हेयर हैं। ओके। ब्लैक यस सर हेयर, लेट मी राइट इट लाइक बी एच। और एक के वाइट हेयर है, वाइट डब्लू, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद में बोल रहा है कि जिसके वाइट हेयर है वो बोल रहा है मैं बॉय हूँ, ठीक है? जिसके भी वाइट हेयर हैं, ओके, वाइट हेयर वाले को, वाइट हेयर वाला बोल रहा है कि मैं बॉय हूँ। ओके। तो ये बोल रहा है कि मैं बॉय हूँ। नेक्स्ट जिसके ब्लैक हेयर हैं वो बोल रहे हैं मैं गर्ल हूँ।
ठीक है। Yes, और yes. इनमें से कोई एक स्टेटमेंट तो कम से कम फॉल्स है, एटलीस्ट। ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग। क्या पता दोनों लाई कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग। ओके, मतलब इनमें से कम एक स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, Yes, sir. एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सर इतना समझ में आता है कि सर we will have 3 cases. is false. Okay, actually, see, this type of question very easily you can solve using the cases. What you can do, you can create 2 cases कि जो नेक्स्ट उसके बाद में बोल रहा है कि कौन कौन झूठ बोल रहा है। ओके, बॉय Yes. झूठ बोल रहा है, गर्ल झूठ बोल रही है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, केसेस बना सकते हैं कि एक केस तो ये हो गया कि बॉय के वाइट हेयर है, जो भी बॉय है, ठीक है, Yes, sir. उसके वाइट हेयर है, मान लो ये एक तो ये केस हो गया। और जो गर्ल है उसके मान लो कि उसके ब्लैक हेयर है, एक तो ये केस बन सकता है, Yes. ठीक है। सेकंड केस या तो ये ट्रू होगा, देखो, या तो ये ट्रू होगा, या फिर क्या होगा कि बॉय के ब्लैक हेयर हैं और गर्ल जो है उसके वाइट हेयर है, ठीक है। या तो ये ट्रू Yes. होगा या फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उनमें से एक तो बॉय है एक गर्ल है, तो उसमें तो Yes. कोई डाउट नहीं है। सेकंड चीज ये भी दी हुई है कि उनमें से एक के वाइट हेयर हैं एक के ब्लैक हेयर हैं, इन चीजों में कोई डाउट नहीं है, देखो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्ल एंड बॉय आर टॉकिंग टू ईच अदर, वन ऑफ देम हैज ब्लैक हेयर, अनदर हैज वाइट हेयर। तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 2 केस बना दिए, बॉय Yes, के sir. वाइट हेयर गर्ल के ब्लैक हेयर, या फिर बॉय के ब्लैक हेयर वाइट, या 2 ही केस बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, राइट। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बताओ मुझे। Sir, actually, I was thinking in the direction कि boy, sir, earlier you have written in the slide कि at least one of them is lying. Sir, इसमें सर मैं तो ऐसे सोच रहा था वो और वाले लॉजिक से कि या तो एक ट्रू हो या तो दो दूसरा ट्रू या तो दोनों ट्रू, मतलब कि दोनों सच बोल रहे हैं तो मैं देखो, तो उस। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 2 केस आपने बनाए, अब आप इस बारे में सोच सकते हो कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट तो कम से कम फॉल्स है ही, ठीक है। तो Yes, sir. जैसे इस केस, अब ये केस लेते हैं कि अब कौन सा केस है, जैसे इस केस में, ओके, इन दिस Yes, sir. केस लेट्स डिस्कस। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि जिसके ब्लैक हेयर हैं वो कौन हो गया इस केस में। ओके, जस्ट फोकस ऑन दिस केस। इस केस के अंदर ब्लैक हेयर वाली गर्ल है, ओके, जिसके ब्लैक हेयर हैं वो बेसिकली गर्ल है, Yes, ठीक sir. है, इस केस में। और वो बोल रही है, ब्लैक हेयर वाले जो है वो बोल रहा है कि मैं गर्ल हूं, ओके, ठीक है। तो ये Yes, जो स्टेटमेंट है ये देखा जाए तो ट्रू हो गया इस केस में, क्योंकि ब्लैक हेयर गर्ल के हैं। और yes, आप देख सकते हो कि और जो ब्लैक हेयर वाला है वो बोल रहा है कि मैं गर्ल हूं, तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली इस केस के अंदर ट्रू हो ही गया। yes, सेकंड sir. चीज, जो व्हाइट हेयर वाला है वो बोल रहा है कि मैं बॉय हूं, व्हाइट हेयर वाला बोल रहा है कि मैं बॉय हूं, ठीक है। Yes, sir. और बताओ इस केस में व्हाइट हेयर वाला कौन है, इस केस में व्हाइट हेयर वाला एक्चुअल में बॉय है, Yes, sir. तो इस केस में ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, मतलब ये केस तो पक्का नहीं है, क्योंकि इनमें से कम एक स्टेटमेंट तो फॉल्स होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. तो आप देख सकते हो कि ये जो केस है ये पूरा केस तो एक तरीके से रॉन्ग हो गया, कि ये केस तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो सिंपल, देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग वाला आना चाहिए, मतलब। हाँ, कम से कम एक जने को तो कम से कम एक जने, ये कम से कम एक जने को तो झूठ बोलना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे। यस सर, यस सर. अगर ऐसा हुआ कि बॉय व्हाइट हेयर है और गर्ल अगर ब्लैक हेयर है, अगर ऐसा हुआ मान लो, तो दोनों सच बोल रहे हैं, कम यस से सर, कम एक को तो झूठ बोलना चाहिए। यस सर. तो ये केस तो पक्का पक्का आप क्या क्या कर सकते हो, इस केस को तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि भाई ये केस तो नहीं होगा, यस सर. ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बनेगा, आंसर ये केस बन जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि इस केस में एक्चुअली दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइट हेयर वाला बोल रहा है मैं बॉय हूं, यस सर. जिसके व्हाइट हेयर है वो बोल रहा है कि मैं बॉय हूं। और एक्चुअली इस केस में व्हाइट हेयर वाला कौन है, इस केस में व्हाइट हेयर वाला एक्चुअली गर्ल है। गर्ल है. तो इस केस में बेसिकली ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, है ना, यस सर. कि व्हाइट हेयर वाला बोल रहा है मैं बॉय हूं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यस सर, और इस केस में ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया कि जो ब्लैक हेयर वाला बोल रहा है कि मैं गर्ल हूं, वो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। यस सर. ब्लैक हेयर वाला बोल रहा है कि मैं गर्ल हूं, लेकिन ब्लैक हेयर वाला इस केस में कौन है, वो बॉय है। तो बेसिकली ये जो दोनों स्टेटमेंट है कि व्हाइट हेयर वाला बोल रहा है मैं बॉय हूं, ब्लैक हेयर वाला बोल रहा है मैं गर्ल हूं, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो सही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। ये जो केस है, ये केस सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस के यस अंदर सर. एक बॉय है एक गर्ल है, एक के ब्लैक हेयर है एक के व्हाइट हेयर है,
और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये केस जो है ये वैलिड है। Yes. तो आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना कि ये Yes, sir. केस Yes, जो sir. है, आपका जो आंसर है ये केस है जहां पे बॉय के ब्लैक हेयर है और गर्ल के व्हाइट हेयर है और Yes, दोनों sir. ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। Sir, and the same goes with night and day वाले question. हाँ, नाइट एंड डे वाले क्वेश्चंस में भी केसेस बनते हैं। Sir, actually, ठीक है। I have solved earlier it like first I have considered in case one that night was saying one of them was saying right, and then I approached and that contradictory state came, and then we considered that case wrong. And then second case, we have considered the other person saying right and contradiction नहीं आया तो उसको हम सही मान के कर दिया। तो सर ये वाली देखो, अप्रोच थी उसमें। जो पजल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, यस ये सर। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है कि थोड़ा सा होता है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद में आपको एकदम हो जाता है कि यार क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जो पजल वाले जितने भी क्वेश्चन है गेट में आए हुए हैं, बाय द वे पजल वाले क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। ज्यादा ओके तो सर। नहीं आए, गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हैं, दो चार क्वेश्चन हैं। आप पहले तो उनको सोल्व करो। ठीक है, ओके सर। पहले उनको सोल्व करो, फिर उनको सोल्व करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गेट में जो पजल वाले क्वेश्चन आए हैं वो मैंने कर लिए। एक्चुअली आप ऐसे अलग से उनको सोल्व मत करो, आप तो प्रोपोजिशनल लॉजिक आप जैसे कंप्लीट करो। यस कंप्लीट सर। करने के बाद में प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट करने के बाद में आप गेट के पीवाईक्यू सोल्व करो, जैसे अभिषेक ने किया, अभिषेक तिवारी ने। ठीक है। सर किए तो मैंने भी है सर। कुछ कुछ हाँ, जगह ये फंस रहा था सर, मतलब यही चीज खटक रही थी दिमाग में बस। वो कर मैंने भी लिए सर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये यस चीज सर। आपको हेल्प करेगी कि लाइफ मतलब जब भी, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है कि जिस अप्रोच में आप सोच रहे हो उसी अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व हो। तो आप अपनी अप्रोच में ट्राई करो, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। फिर बाद में आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के अंदर हो सकता है कि दूसरी अप्रोच हो, तो उसको सीख लो। ऐसे अटक के नहीं बैठना है कि यार मेरी अप्रोच से क्यों नहीं हुआ, मतलब नहीं नहीं इससे होना ही चाहिए, जरूरी नहीं होता ऐसा। ठीक है, जैसे कोई कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने के लिए हो सकता है कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज हो। ओके। अब अगर आप अटक के बैठ जाओ कि नहीं मेरे को तो डायरेक्ट प्रूफ यूज करना है, मैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज ही नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत बार ऐसा नहीं होगा। इवन किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर आप डायरेक्ट प्रूफ यूज करोगे तो इसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते। इसको इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ही काम आएगा। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपको ऐसे मतलब ऐसे नहीं, ईगो पे नहीं लेना कि यार मेरी अप्रोच से क्यों नहीं हो रहा। आप ट्राई करो अपनी अप्रोच से, होता है तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है अगर होता है तो। लेकिन अगर नहीं होता है तो थोड़ा ट्राई करने के बाद में, अटेम्प्ट डालने के बाद में, फिर उसके बाद में देखो सॉल्यूशन, देखो उस अप्रोच को सीखो और सोचो कि हाँ यार ये मतलब सोचा जा सकता है ऐसे। प्रैक्टिस से आती हैं ये चीजें। अगर आप पूछो कि सर उसने ऐसे अप्रोच किया, मैं ऐसे सोच ही नहीं पाया, अरे तो भाई एक दिन में थोड़ी होगा। आज आज मतलब हम तो क्या है कि चलो जैसे गेट कंप्यूटर साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी अप्रोच करते हैं, उनको आप सोच ही नहीं सकते। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक एल्गोरिथम के अंदर एक स्ट्रेसन एल्गोरिथम होती है। यस सर। ठीक है, आपने अगर जब एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एक स्ट्रेसन का एक एल्गोरिथम रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर, उसके जब वो आईआईसी बेंगलोर के अंदर जब प्रोफेसर ने हमें वो एल्गोरिथम, जब वो चल रही थी स्ट्रेसन वाली एल्गोरिथम चल रही थी, तो उस टाइम उन्होंने एक लाइन बोली थी। उन्होंने बोली, स्ट्रेसन ने एक गजब का आइडिया दिया। एक्चुअली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन क्यूब की बजाय एन की पावर 2 पॉइंट समथिंग हो जाती है। ठीक है, यस सर। बहुत मतलब एक इम्प्रूवमेंट है। पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी कुछ ऐसे ही उस प्रॉब्लम की, एन क्यूब थी, फिर उसके बाद में एन की पावर 2.1 2.7 ऐसा सब कुछ हो जाती है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जब आप पढ़ोगे एल्गोरिथम सब्जेक्ट में तो आपको दिखेगा। उसके लिए जो हमारे प्रोफेसर आए थे बेंगलोर के अंदर, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि स्ट्रेसन ने ये कैसे किया, वो आज तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस हम सर। पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेसन ने ये कैसे किया, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने दे दिया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं देता तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता है। मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो प्रोफेसर है उसने ये बोला कि स्ट्रेसन ने ये कैसे किया, कहां से स्ट्रेसन के दिमाग में आया कि ऐसे कर देना चाहिए, वो कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, वो तो उसने कर दिया इसलिए हम पढ़ रहे हैं। यस लेकिन सर। अगर किसी को मतलब वो कहां से उसके दिमाग में आया कि ऐसे करना चाहिए, वो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इवन, आई थिंक इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि मतलब स्ट्रेसन के अलावा शायद कोई कर भी नहीं पाता। तो वो एक चीज है, तो इतना इतना मत सोचो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो। आप जिस अप्रोच से कर रहे हो अगर उस अप्रोच से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी अप्रोच एक बार सीख लो और उसके बाद में और प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप खुद बेटर बनते जाओगे। ठीक है। और सर कभी, एक क्वेश्चन और था सर। सर और एक बस एक चीज, कभी यस भी डिमोटिवेट इस चीज को सोच के मत हो कि यार उसने ऐसे कैसे अप्रोच कर दिया, मैं तो ऐसे सोच ही नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई,
ठीक है, वो उसने अप्रोच कर लिया क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी होगी। अब आपने सीख लिया, अब फ्यूचर में आप भी तो कर पाओगे। फ्यूचर में आपको देख के भी तो कोई सोचेगा कि यार इसने ऐसे कैसे अप्रोच कर लिया, मैं तो नहीं कर पाया। तो ऐसे मतलब किसी को देख के ऐसे सोचना मत कि यार उसने कैसे अप्रोच कर लिया, सर ने ऐसे कैसे अप्रोच कर लिया, मैं तो सोच ही नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई, आप सोच नहीं पाए लेकिन आप सीख तो सकते हो। तो वो चीज़ है, ठीक है। नहीं सर, सर एक जैसे सर लैंग्वेज में सर कभी कभी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो जाती है सर। जैसे सर कभी कभी आ जाता है क्यू फॉलोड फॉलोड फ्रॉम पी, या तो उसमें सर पी इम्प्लाइज क्यों करना है, क्यू इम्प्लाइज भी करना है सर कभी सर, थोड़ा सा उसको ये सर कंप्लीट कर दीजिए। ये सिंपल सी वर्बल एबिलिटी है इसका। इंग्लिश इंग्लिश में जैसे आप फॉलो फॉलोड ये चीजें, जैसे कि मतलब अगर आप मेरे को बोलो कि सर पी फॉलोड बाई, फॉलोज फ्रॉम बोला था सर। हाँ मैं दोनों लेता हूँ, ठीक है। यस सर, यस जैसे सर, ये स्टेटमेंट है पी फॉलोड बाई, मान लो पी एक इंसान है यस सर। और क्यू भी कोई है, ठीक है। और आप स्टेटमेंट बोल रहे हो पी फॉलोड बाई क्यू, फॉलोड बाई क्यू, तो बताओ बाद में कौन आया। सर क्यू फॉलो कर रहा है और पी आगे आगे जा रहा है। वेरी गुड, तो पी फॉलोड बाई क्यू इसका मतलब है कि पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। ओके, यस सर। क्योंकि क्योंकि फॉलोड बाई मतलब फॉलो कौन कर रहा है, क्यू फॉलो कर रहा है। इस सेम स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्यू फॉलोज पी। ये क्यू सेम फॉलो। स्टेटमेंट मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि क्यू फॉलोज पी। ओके, यस सर, यस सर, मतलब कि अगर पी होगा तो क्यू होगा, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब ये चीजें क्या है कि वर्बल एबिलिटी की चीजें हैं, इनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट से कोई ऐसे लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो कि बस गूगल के ऊपर आप सर्च कर लो कि ये सारे स्टेटमेंट की मीनिंग सर्च कर लो कि यस सर। फॉलोड बाई का क्या मतलब है, फॉलोज का क्या मतलब है, ठीक है। ये आप आज ही गूगल के ऊपर बस डाल दो पी फॉलोज क्यू, पी फॉलोड बाई क्यू, इन चार पांच और स्टेटमेंट डाल दो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है सर सारे फॉलोज डाल दो। फ्रॉम है सर, वो तो आया था क्वेश्चन में सर, फॉलोज हाँ बताओ फ्रॉम। क्या है स्टेटमेंट, क्या है पी। सर पी फॉलोज फ्रॉम क्यू अगर है सर, फॉलोज फ्रॉम तो वर्ड मैंने सर देखा था एक प्रैक्टिस सेट में सर, इसलिए फॉलोज फ्रॉम। हाँ, तो जो स्टेटमेंट है वो है पी फॉलोज फ्रॉम। फॉलोज फ्रॉम क्यू। हाँ ये भी सेम है, पी फॉलोज फ्रॉम। अब यहाँ पे कौन आएगा पहले बताओ। यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचो और बताओ कि पी फॉलोज फ्रॉम क्यू, तो यहाँ पे क्यू इंप्लाइज पी होगा, सर कैसे? ठीक है। क्योंकि कौन फॉलो कर रहा है, पी फॉलोज फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्यू इंप्लाइज पी। ओके, इज दिस क्लियर, इज दिस डाउट क्लियर। यस सर, यस सर। ठीक है, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ सिंपल वर्बल एबिलिटी है, इसमें ऐसे ज़्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप गूगल के ऊपर या ये चार स्टेटमेंट डालो, जो भी आपका कन्फ्यूजन है उस स्टेटमेंट का बस एक बार इंग्लिश का मीनिंग देख लो। ये सिंपल एक वोकेबुलरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी फॉलोज फ्रॉम क्यू, तो मतलब बाद में कौन आया, मतलब फॉलो कौन कर रहा है वो देखो, बस फॉलो कौन कर रहा है, पी फॉलो कर रहा है। जो फॉलो कर रहा है वो बाद में आएगा मतलब। हाँ हाँ राइट, बिल्कुल, जो फॉलो कर रहा है वो बाद में आएगा, राइट। जब हम बोलते हैं कि पी फॉलोज क्यू, अगर हम बोलते हैं पी फॉलोज क्यू, क्यू ठीक है, तो इम्प्लाइज पी। फॉलो कौन कर रहा है, पी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे होगा क्यू क्यू इंप्लाइज इम्प्लाइज पी। पी, हाँ। ओके, यस सर। एनी अदर डाउट। नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्टूडेंट इज सेइंग, दर्श इज सेइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे मींस मुंबई से पुणे, यस यस। नेक्स्ट, Sushma is asking, sir, I want a suggestion for preparing effective notes, sir. Should I make notes while listening to the class or after the class? Sushma, try both. Okay, for 2-3 lecture, try one strategy. For 2-3 lecture, try another strategy. See which one is working the best for you. Okay, different toppers, they follow different strategy. So maybe what you can do, for 2-3 lecture, you try this, and 2-3 lecture, you try that. Okay, so which works the best for you? आपके लिए क्या बेस्ट है, हो सकता है मेरे लिए अलग बेस्ट हो। आपके लिए क्या बेस्ट है, जैसे मैं अगर मेरा बताऊं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो एक्चुअली अगर लेक्चर बहुत हार्ड है ना, मैं अगर लेक्चर देख रहा हूँ कि लेक्चर हार्ड है, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं आराम से मतलब लेक्चर को मैं क्या करता हूँ कि आराम से देखते हुए नोट्स बनाता हूँ। देखते हुए जब चल रहा है लेक्चर, तो मैं देखते हुए नोट्स बनाता हूँ, ताकि क्योंकि लेक्चर अगर हार्ड लग रहा है मुझे, तो उस सिचुएशन के अंदर कई बार मैं एनपीटीएल का लेक्चर देखता हूँ या किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चर देखता हूँ, अगर वो मुझे हार्ड लग रहा है थोड़ा समझने में, तो मैं आराम से उसको देखता हूँ और देखते हुए नोट्स बनाता हूँ। लेकिन अगर लेक्चर इजी लग रहा है ना, तो मैं पहले उसको पूरा ऐसे खत्म करता हूँ, जैसे 1.5x पे या 2x पे, जल्दी से उसको पूरा खत्म करने के बाद में, फिर उसके बाद में मैं उसके जल्दी से बस अनोटेड नोट्स से उसका खुद के नोट्स बना लेता हूँ।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट काम कर रहा है। सुषमा, इज योर डाउट लाइक आंसर्ड? क्योंकि हम भी लेक्चर देखते हैं, मैं भी एनपीटीएल के या किसी का भी लेक्चर देखता हूं, तो दिस इज व्हाट आई डू। कई बार अगर लेक्चर हार्ड होता है, कई बार वो जो टॉपिक होता है वो समझने में थोड़ा हार्ड होता है, तो थोड़ा मैं आराम से देखता हूँ, मैं अपनी कॉपी पेन साथ में रखता हूँ और लिखता जाता हूँ कि हाँ क्या क्या मैंने समझ लिया है। ठीक है, मैं अपने नोट्स लिखते जाता हूँ। और अगर लेक्चर ही ईजी है, आधे घंटे का लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर और बहुत ईजी है मेरे लिए, तो मैं जल्दी से उसको 2x की स्पीड पे पूरा देखता हूँ। ऐसे में स्किप नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, तो मैं 2x की स्पीड पे उसको देखता हूँ, जब तक मैं आराम से मैं देख रहा हूँ। जैसे ही वो लेक्चर खत्म होता है तो मैं जल्दी से उसके जो अनोटेड नोट्स हैं उनसे भी आप नोट्स बना सकते हो सुषमा। क्योंकि अगर लेक्चर ईजी है तो आप आराम से अनोटेड नोट्स से आप अपने नोट्स लिख लो। वो आपका टाइम सेव होगा, आपको उस लेक्चर को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है अगर आपको उस लेक्चर का सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ गया है। अगर वो लेक्चर आपके लिए ईजी है या फिर उस लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो आप लेक्चर देखने के बाद में अनोटेड नोट्स से आप अपने खुद के नोट्स बना लो। अगर लेक्चर आपको हार्ड लग रहा है कि यार ये लेक्चर इतना ईजी नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर लेक्चर देखते हुए अपने नोट्स बना लो आराम से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी आपको हर लेक्चर के लिए अप्लाई करनी है। देख लो कि मेरे लिए यार क्या इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मेरे मुझे क्या करना चाहिए। अल्टीमेट टारगेट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, let me see some more doubt. A student is asking, Sanidhe, what is your doubt? Sanidhe, you have sent a photo. Can you tell me your doubt? P implies Q means if P true, then Q true. P implies Q means if Q false, then P false. Yeah, that's fine, right? See, Sanidhe, these two statements are same. P implies Q. This is equivalent to negation Q implies negation P. Okay? We have already seen this in our propositional logic course, that these two statements are equivalent. Okay, these are called contrapositive, like P implies Q, and this statement, this is called contrapositive. This is called contrapositive of P implies Q. Okay, so these two statements are same. P implies Q, this is same as negation Q implies negation P. Now remember, when I say P implies Q, it means if P is true, then Q is true. Okay, I will say if P is true, if P is true, then Q is true. Okay, so this same statement I can also say, see, this same statement I can also write negation Q implies negation P. That means if Q is false, then P is false. Are you getting my point? All these four statements are same. All these are same. Because remember, P implies Q, that is equivalent to negation Q implies negation P. So you can see P implies Q. That means, okay, what this means? This means if P true, then Q true. So this statement is same as, this is same as negation Q implies negation P. That means if Q false, because this is negation Q. So if Q false, then negation P. Negation P means if then P false. So these statements are same. Sanidhe, is your doubt clear? Let me know. Sanidhe, you can raise your hand. You did not raise your hand. You can raise your. You can speak now, Sanidhe. हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, audible. सर, लाइक आपने जो बोला था ना, एक स्टेटमेंट दिया था, इफ क्यू इज फॉल्स देन कैन पी बी ट्रू। तो हमने फिर आपने बोला था कि नो, बिकॉज इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमने डिक्लेयर कर दिया था लाइक कि इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू इज इक्विवेलेंट टू इफ क्यू इज फॉल्स देन पी इज फॉल्स। ये नहीं समझा सर कि बस एक स्टेटमेंट से हमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि क्या दोनों मैं समझा इक्विवेलेंट नहीं, है। आपने क्या बोला कि सर, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, इफ क्यू इज फॉल्स देन कैन पी बी ट्रू। तो ओके, ऑफ देखो कोर्स देखो नॉट, देखो, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ अगर P ट्रू होता है तो Q ट्रू होगा। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? इफ मान लो क्यू ये इज फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू देन है, कैन। मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ना, P implies Q, ये ट्रू है। मतलब इस ये स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि जब जब P ट्रू होगा तो Q पक्का ट्रू होगा। हाँ, अब बताओ।
तो सर आपने फिर क्वेश्चन किया था कि इफ लाइक कि अगर Q if Q false is है, false then can P हाँ, हाँ कैन P be if Q is false, कि हाँ कैन P be true, एंड उसके ओके। हाँ हाँ अगर मान लो कि Q false है, can P देन be true देन तो फिर कैन P be true, कैन P be true। हम्म तो अब आप देखो, अब आप बस सोच के बताना कि मैं हाँ बोल रहा हूँ कि तो ये सर जो आपने स्टेटमेंट है फिर P implies Q, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ P ट्रू देन Q ट्रू। हम्म ठीक है, अगर P ट्रू होगा तो Q पक्का ट्रू होगा। ठीक है, अब आप यस सोचो, सर मान लो कि आपको दिया हुआ है कि Q फॉल्स है, ये दिया हुआ है कि Q तो फॉल्स है ही। अब P ट्रू हो सकता है क्या? अगर P ट्रू हो गया तो Q ट्रू होना चाहिए ना। यही तो हाँ अपन हाँ बोल रहे हैं कि अगर P ट्रू हो गया तो Q ट्रू होना चाहिए ना। टेल मी, यस यस सर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर P ट्रू हो हम्म गया तो Q ट्रू होना चाहिए। तो अगर इसका आंसर यस हुआ, सोच के देखना, हाँ अगर इसका आंसर यस हुआ कि कैन पी बी ट्रू, अगर इसका आंसर यस हुआ तो क्यू को ट्रू होना चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हो क्यू फॉल्स है, तो Q कॉन्ट्राडिक्शन false आ है रहा है। यस इसका मतलब हाँ अगर क्यू फॉल्स है तो पी ट्रू नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर क्यू यस फॉल्स है तो पी भी फॉल्स होगा। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं बोल सकता हूं कि अगर क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स होगा। ओ now I got it सर पक्का? गोट इट राइट? यस मतलब ऐसे यस एकदम पक्का वाला गोट इट, या फिर ऐसे कि यार ठीक है बाद में सोचूंगा इसको, ऐसा वाला? like अंडरस्टूड दिस? not exactly but understood like the देखो देखो, इसका कुछ एनालॉजी लो, जैसे कि अगर, जैसे मान लो ये बोला हुआ है कि अगर आपने काम किया, ठीक है, इफ यू वर्क, ओके, वर्क फॉर 8 आवर्स, अगर आपने 8 घंटे काम किया तो आपको मान लो 15,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये किसी yes ने, किसी कंपनी ने बोल दिया। ओके, मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने ये आपको स्टेटमेंट बोल, उसके उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन लिखी हुई है। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मान लो कि ये लाइन लिखी हुई है, कंपनी सी ने आपको ये स्टेटमेंट बोला हुआ है। ठीक है, अब आप हम्म, बताना, अगर आपको 15,000 सैलरी नहीं मिली, मान लो कि महीने के एंड में आपको 15,000 सैलरी नहीं मिली, मतलब ये फॉल्स हो गया कि आपको ना महीने के एंड में जब सैलरी मिली तो 15,000 सैलरी नहीं मिली। ठीक है, समझ गए? तो आप बस ये बताओ, yes अगर आपको 15,000 सैलरी नहीं मिली तो क्या आपने 8 घंटे काम किया होगा? no हाँ, वही तो। अगर आपको 15,000 सैलरी नहीं मिली तो पक्का आपने 8 घंटे काम नहीं किया, क्योंकि अगर आपने 8 घंटे काम किया होता तो 15,000 सैलरी मिलती। yes थोड़ा सोचो, ये इतना कोई हार्ड नहीं है। आपको आज आज अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लाइन लिखी हुई है, आप अगर 8 घंटे काम करोगे तो आपको 15,000 सैलरी मिलेगी, ये लाइन लिखी हुई है। अब मान लो महीने के एंड में आपको 15,000 सैलरी नहीं मिली, तो क्या ऐसा हुआ होगा कि आपने 8 घंटे काम किया? ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आपने आठ no घंटे no काम किया होता तो आपको 15,000 सैलरी मिलती, वरना तो आप केस कर दोगे। ठीक है, वरना तो कंपनी के ऊपर yes केस कर दोगे कि देखो मैंने 8 घंटे काम किया, मेरे को 15,000 सैलरी नहीं मिली, तो इस कंपनी के ऊपर आप केस कर दोगे। तो इसका मतलब अगर कंपनी अगर आपको 15,000 सैलरी नहीं दी, इसका मतलब आपने 8 घंटे काम नहीं किया होगा। देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो या तो आप अपनी खुद की एनालॉजी को बना लो, या फिर हटाओ सारी चीजें। P इंप्लाइज Q जो होता है, दैट इज इक्वलेंट टू नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, और इसको प्रूव करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो है ट्रुथ टेबल। इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इतना टेंशन में मत आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, एनालॉजी से समझ में नहीं आया, हटाओ उसको, सॉरी ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम है, P इंप्लाइज Q एंड नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। क्यों? आप इसको आराम से फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इसकी ट्रुथ टेबल बना लो। ट्रुथ टेबल आप बनाओगे तो क्या आएगा? ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई, yes और आप इसकी भी ट्रुथ टेबल बना के देख लो, आपको सेम बनेगी। ठीक है, जैसे कि yes इस केस में बोट विल बी नेगेशन क्यू इन द फर्स्ट केस, true या इन दिस केस नेगेशन क्यू विल बी ट्रू, एंड इन दिस केस नेगेशन पी विल बी negation ट्रू। yes ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या yes होता है? true ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू होता है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट सेकंड बताओ, इस केस में नेगेशन क्यू क्या बना? false फॉल्स। false implies true which is true फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो ये yes भी हो गया। नेक्स्ट इस केस में बताओ, इस केस में नेगेशन क्यू ट्रू true बन गया, नेगेशन पी फॉल्स बन गया। हाँ
ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है? तो विच इज फॉल्स। फॉल्स, ये हो गया। और फाइनली एक लास्ट केस, इस केस में नेगेशन क्यू क्या बना? फॉल्स। नेगेशन पी क्या बना? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स क्या होता है? ट्रू। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू होता है। ठीक है, तो आप देख लो, ये जो स्टेटमेंट है पी इंप्लाइज क्यू और ये जो स्टेटमेंट है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ये दोनों सेम है। ये प्रूफ समझ में आ गया ट्रुथ टेबल से? हाँ सर, ट्रूथ टेबल वाला समझ में आ गया था, बट जो आपने एनालॉजी दी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रट रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा है। देखो, तो एनालॉजी का क्या मतलब होता है? एनालॉजी कब दी जाती है? जब आपको कोई चीज मान लो समझ में नहीं आ रही, उस टाइम समझने के लिए एनालॉजी दी जाती है। अगर आपको ऑलरेडी ये वाली समझ में आ गई तो एनालॉजी को हटाओ। अगर एनालॉजी चीजें हार्ड बना रही है तो एनालॉजी को हटा के फेंको। एनालॉजी का तो मकसद ही है कि चीजें इजी बनाना। ठीक है, कभी भी कोई ओके एनालॉजी सर। कब देता है? एनालॉजी तब दी जाती है जब आपको चीजें समझने के लिए इजी बनानी हो। अगर आपके लिए एनालॉजी काम नहीं कर रही है, एनालॉजी आपको कंफ्यूज कर रही है, हटाओ उसको। सिंपल सा है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बात खत्म। ठीक है, पी इंप्लाइज क्यू, ये स्टेटमेंट हमेशा सेम है। नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि इफ पी ट्रू देन क्यू ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इफ क्यू फॉल्स देन पी इफ फॉल्स। यू फॉल्स। ठीक है, समझ गए ना? तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम यस है। सर। इफ पी ट्रू देन क्यू ट्रू, दैट इज सेम एज इफ क्यू फॉल्स देन पी फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। और कोई डाउट? नो सर, मैं बस वो एनालॉजी के ऊपर ज्यादा ओवरथिंक कर रहा था। ओवर थिंकिंग मत करो बस। एक्चुअली होगा, मुझे यस पता है थोड़ा। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं शुरुआत में आप हर हर चीज को ओवर थिंकिंग करते हैं। एक्चुअली एक चीज मैं एक लाइन बताता हूँ, उसको थोड़ा समझना। जब हम चीजों को बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं ना तो वो ब्लर दिखाई देती हैं। आप कभी भी ये नोटिस करना, आपने बचपन से देखा होगा। अब हाँ ये हाँ। मेरे को दिख रहा है, अब इसको मैं बहुत ज्यादा गौर से देखूंगा ना, बहुत ज्यादा गौर से देखूंगा तो ये मेरे को ब्लर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यस सेम यस। चीज है कि कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट, जो इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो भी अपन हार्ड बना देते हैं। यस ठीक सर। है, ओवर थिंकिंग का ये होता है। तो इसलिए आराम से, आराम से, इतना ऐसा वो नहीं है कि यार ये, आराम से उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होगा, कई बार गेट का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर है ना आप ओवर थिंकिंग कर जाओगे कि सर इसमें ऐसे कर देंगे ऐसे। फिर आपको पता चलेगा कि यार मतलब फालतू की ओवर थिंकिंग हो रही थी। ठीक है, चीजों को सिंपल रखो। स्टडी को जितना सिंपल रखोगे, जितना है ना, एक होता है ना कि किसी सिंपल सी चीज के ऊपर भी है ना अपना अगर पूरा दिमाग अगर लगा दिया तो वो चीज फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। ठीक है, ओके सर। कोई और डाउट? नहीं सर, बस और एक और बात थी, लाइक जब टेस्ट सीरीज में जब टेस्ट देता हूँ ना, तो हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक कॉन्सेप्चुअली ना सॉल्व करके हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करता हूँ, और फिर जब एनालिसिस करता हूँ तब एक्चुअल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूँ। तो मुझे मतलब जब टेस्ट दे रहे तो टाइम कम होता है, ऐसा लगता है कि बस टाइम देख रहा हूँ बार बार, और हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करता हूँ। सो तभी कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, या फिर शायद टाइम प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मुझे यही पूछना था कि मैं खुद इसको। मैं खुद अगर गेट एग्जाम देता हूं तो मैं एग्जाम के अंदर थोड़ी मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। सोचो, अगर कोई क्वेश्चन है वो अगर सिंपल सा काउंटर एग्जांपल से सॉल्व हो रहा है या एन की वैल्यू 2 रखने से सॉल्व हो रहा है, तो मैं वहां पे बैठ के कंप्लीट एनालिसिस थोड़ी करूंगा। उन 3 घंटों के अंदर आपका पर्पस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। वहां पे कंप्लीट एनालिसिस थोड़ी करना है कि अच्छा इसके वेरिएशन क्या बनेंगे। अरे यार सर ने गो क्लासेस में तो हर चीज के वेरिएशन होते थे, इसमें भी वेरिएशन करता हूँ। भाई उस 3 घंटे के अंदर आपका पर्पस है उस क्वेश्चन का आंसर लेके आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन जैसे टेस्ट खत्म हुआ, जब एनालिसिस कर रहे हो तब आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। ठीक है, यस, तो ओके वही सनी। पूछना था कि लाइक जो मेरा अप्रोच है वो गलत है या सही है। हाँ, कहाँ से गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। जब आप टेस्ट दे रहे हो, अगर 15 क्वेश्चंस को अगर आप बस आंसर लाओ, करेक्ट आंसर लाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अब वो किसी भी मेथड से ला सकते हो, ब्रूट ओके। फोर्स से, हिट एंड ट्रायल से, काउंटर एग्जाम्पल से, या एलिमिनेशन से, या कंप्लीट एनालिसिस से, प्रूफ से, कैसे भी लाओ। उस 3 घंटे के अंदर जब टेस्ट दे रहे हो, उस 15 मिनट या 3 घंटे के अंदर आपको सिर्फ मतलब क्वेश्चन सोल्व करने हैं उस टाइम। तो उस टाइम थोड़ी बैठ के सोचना है कि अरे बिना प्रूफ के कर दूंगा तो मतलब कोई, कोई खा के थोड़ी भागेगा। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। वो जो जब आप टेस्ट ओके। दे रहे हो तब तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, जैसे भी सोल्व हो क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप टेस्ट खत्म हो जाए तो कंप्लीट एनालिसिस करना है। टेस्ट खत्म होने के बाद में अगर आप ऐसे एन की यस वैल्यू रख रहे हो या फिर हिट एंड ट्रायल कर रहे हो या ब्रूट फोर्स कर रहे हो, तब तो फिर मतलब है ना वो चीज आपके फ्यूचर के लिए मतलब अच्छी नहीं है। उससे क्या कि आपकी एनालिटिकल स्किल नहीं इंप्रूव नहीं सर। हो रही। ठीक है, हाँ। ओके, नहीं, मेरा कोई और बस यही डाउट? डाउट था कि मैं तब हिट एंड ट्रायल करता हूँ, और जब एनालिसिस करता हूँ ना तब लाइक एक्चुअल जितने भी कंसेप्ट है सभी आ जाते हैं और कंसेप्चुअली सॉल्व करता हूँ।
तो बस यही डाउट था कि इज इट राइट अप्रोच, तो वो समझ गया अभी। बिल्कुल बिल्कुल, it is the right approach. थैंक यू सर। Okay. Vijay is saying, sir, this time in GATE exam in set 2, there are many questions from the textbook. Vijay, just yesterday, you won't believe कि हम कल ही जो हमारी टीम मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इस बार सेट 2 के अंदर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। तो आपको अभी क्या देखने को मिलेगा, जितनी भी नई वीकली क्विजेस बनेंगी ना, हमने आपको बताया कि बहुत सारी नई वीकली क्विजेस बनेंगी, उन नई वीकली क्विजेस के अंदर है ना, हम अब जितने भी टेक्स्ट बुक है, एक्चुअली ऑलरेडी हम, आपने देखा होगा हमारी जो वीकली क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज है, उनमें हम ऑलरेडी, आप हिंदी से कंफर्टेबल हो Vijay? So in our weekly quizzes and test series, already we put the questions from the standard resources, from the standard books. But this year, what we are going to do, for every subject, at least 6 or 7 standard books, which are well known for that subject. From at least 6 or 7 standard books, we will take all the GATE relevant questions and we will put in our weekly quizzes in our test series. Okay, so many new questions you will find in the weekly quizzes, in the test series. Many new questions you will find, so that next year, if they ask any question directly from the textbook, that question you would have already solved in Go Classes test series and weekly quizzes. Don't worry, just yesterday we were having this discussion. Okay. So that's the reason, when you sent this doubt, immediately I got to know about it. Okay, so do not worry, this year in Go Classes, many weekly quizzes and many new questions you will find in the weekly quizzes, in the test series, and those questions will be from the standard books. Okay, so that next year you don't even have to think that okay, this question came from the standard book, because that question you would have solved in the Go Classes weekly quizzes and test series, and then it will become very easy for you in the GATE exam. So do not worry, we have already thought about it. Madhu is saying, sir, in which should I spend more time, practice or lectures? My idea is to spend last 4 months on practice. Is that okay? I am constantly struggling with self doubt. I spent 5 months for GATE 2025 preparation every day with spending 10 hours, and but I got 22 marks according to the answer key. Madhu, this is my suggestion to you, because you got 22 marks according to answer key in the GATE 2025. This is my suggestion, that please follow the course. Please follow the Go Classes course. Okay, because lectures, concepts are more important. See, if you are doing practice without understanding of concept, then it is not good. Okay, you can logically think about it. If your conceptual understanding is not good, then then how the practice will help you? Okay, if your conceptual understanding is not good, then practicing a lot of question is basically just another way of rote learning the answers of those questions. Okay, you are rote learning the, okay, if this type of template comes, if this type of question comes, I will do like this. If this type of question comes, I will do like this. Basically, you are rote learning. Okay, so that's what I'm saying. Please follow the course. Okay, yes, you should complete the syllabus fast. Yeah, because you have already prepared for GATE 2025. Okay, for 5 months you have prepared for GATE 2025. So your first, you follow the course. Okay, you can follow the course with your own speed. You can complete it as fast as possible. Okay, maybe you can complete the course by maybe August, by August end. Okay, but remember, covering the syllabus is not enough. You should focus on understanding the concept. Some students, what they do, just to complete the syllabus fast, they compromise with the understanding of the concept. Please don't do that. Okay, so this is my suggestion to you, that please do not compromise with understanding of concepts. So both things you need to do. You need to understand the concepts, and second thing, you need to complete the syllabus fast, because you have already prepared for the GATE 2025. You are a repeater, so you can complete the syllabus faster than our daily schedule. Okay, and but please do not compromise with the understanding of concepts. If your conceptual understanding is good, then all the questions, practice questions, GATE PYQs, our test series, our weekly quizzes, these things will become very easy for you. Subham is asking, sir, my end semester exams are over yesterday. Because of that, I got a 5 days backlog. So should I focus on ongoing topic or slowly cover the backlog? And yes, slowly cover the backlog. 5 days backlog is not too much, Subham. If your backlog, let's assume if you have 2 months of backlog, then in that case, I will say that, okay, focus on the current lecture, focus on the current topic, current subject. But 5 days backlog is not too much. Okay, in the next 10 days you can cover it, and you can come with the synchronize, you can come in sync with us. Sandeep is asking, sir, Go Classes paid courses live hote hain? Please watch the orientation session and our course launch session. Sandeep, did you watch Go Classes GATE CSE orientation session?
Did you watch it? Can anyone provide the link of Go Classes Gate CS 2026 orientation session to Sandeep? Please, in the reply, please send this orientation session link. Sandeep, on Go Classes YouTube channel, just watch the Gate CS 2026 orientation session. Watch it. Okay, all your doubts will be clear. Abhishek, you are sending a doubt. You are sending a question. Is there any doubt in that question? Hello, Praveen Ganesh. You can speak. Yeah, sir. It is audible. Yes, audible. Yeah, sir. I have a small doubt in bycase method, sir. By case method. Tell me what is After the doubt. using bycase method, assume we got a P and not P, sir. In that Mhm. case, we can use again bycase or we can leave that one. Sorry. Sorry Can for I that. repeat again? See, it depends on what the question is asking. For example, if the question is asking that, let's assume a statement is given to you. Okay, some statement S is given to you, and let's assume the question is asking is as tautology. Okay, let's assume this is what the question is asking is as a tautology. Okay, and let's assume now you are creating the by case method. You are creating two cases. Okay, one case is P false, another case is P true. Okay, let's assume that in this case, when P is false, let's assume in this case you are getting false. For example, in this case, let's assume ultimately at the end, this S is becoming R and negation R. Okay, this is what you Yes, are sir. asking, Yeah. right? Yes, sir. Same. That's what I'm saying. It will depend on the question. See what the question is asking. Question is asking is as tautology. Okay, and now you are applying the by case method. When P is false, then let's assume this statement as it becomes R and negation R. What is R and negation R? That is false. Okay, now notice one thing. The question is asking is as tautology. So at this moment you can stop because the question is asking is as tautology. In this case, S is becoming It is false. So false. definitely S is not tautology Okay. because tautology means always true. Yes, Tautology sir. means Yeah. always true in every case. Yeah. Okay, but you can see when you are taking P false, then S is becoming false. So definitely at this moment you can stop and you can say that S is not tautology. It's not a total. But remember, if the question is asking is as contradiction, Okay. the question is asking is as contradiction. Okay, now in this case, let's assume you are creating two cases. By case method you are using. When P is false, you are getting as false. Can you stop right now? Sir. Now can you stop? After checking this case, can you stop? Uh, no, sir. P also want to check. It is false. Okay, sir. See, notice one Contradiction thing. always false. Yes, contradiction Always means false. always false. Yeah, always false. Always false. Okay, this is what contradiction means. Oh, Now remember, okay. In always this false case, it means is false. false in every case. Ah, Okay. okay, sir. Now in this Understood. case, you got the false. In this Yeah, case, yeah. in case one, you got the false. You got S equal to false. But you Yeah. cannot stop. You have Yes, to sir. also If check you want these to try cases. this one also. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So remember, by case method is a method, but you can use it for you need to use your concept in different questions. You need, basically you use this by case method according to the question need, what the Oh, okay. question needs. Okay, okay. Are you getting my point? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Understood? So from these Yeah, two it is. questions you can understand, right? Yeah, So it understood, sir. depends on the question. Remember. Okay, okay. Any other doubt? No, sir. No, sir. All clear. Thank you, sir. Okay, Praveen. Hello, Abhishek. Hello, sir. Yes. Sir, I have made like काफी सारे mistakes in such questions. बाई केस मेथड पहले यूज करता था, बट वो थोड़ा लंबा लगता था, तो मैंने जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा तो मैंने सिंप्लीफिकेशन मेथड्स देखे। उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में काफी गलतियां कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वही गलती करी है शायद, एंड आपको सोल्यूशन भी भेजा था इसमें शायद आप वापस। अभिषेक, आप पता क्या गलती कर रहे हो? हाँ आप ये सर। गलती कर रहे हो कि इस क्वेश्चन को अगर मैं इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाया तो मतलब जैसे कुछ पाप कर दिया। आप समझ नहीं रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के हजारों मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा बाई केस मेथड इसमें, अरे कोई और लगा लो, कुछ भी लगाओ, मतलब उस क्वेश्चन को बस सही तरीके से सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हो। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब ये जो लॉज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये मतलब
एक बार थोड़ी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप कभी आपके दिमाग में ये इनके नाम नहीं आएंगे। जैसे आप सोचो, जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप मान लो कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और उसमें मान लो ये इक्वेशन आ रही है, कौन सी इक्वेशन, जैसे कि A B+C। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, AB+AC करोगे, राइट। हाँ। तो आपके दिमाग में ये थोड़ी आता है कि अरे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ, ऐसा आता है क्या? नहीं सर। नहीं आता ना, क्योंकि बचपन में पढ़ा था कि यार ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि अच्छा इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों नहीं लग रहा, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आराम से सोल्व करो। ऐसा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मैं आपको ये बता, चलो कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये एक बार आपका मेरा क्वेश्चन है। सर एक बार आप मेरा सोल्यूशन भी इवैल्यूएट कर लीजिए ना। हाँ बताओ, आपका सॉल्यूशन क्या था? ये प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं और ये सर चार मैंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मैंने भेजा है सर। सर बी सी डी तो मैंने कर लिया था, ए में मैं फंसा था। आपने सॉल्यूशन कहाँ भेजा है? सर उसके नीचे ही भेजा था क्वेश्चन के। नहीं, क्वेश्चन के नीचे आपने सिर्फ ये लिखा है कि ए ट्रू है, B, D फॉल्स। आपने क्वेश्चन के नीचे कुछ और लिखा नहीं है। सर क्वेश्चन के नीचे फोटो भेजी तो थी सर, मैं फिर से भेज देता हूँ। जल्दी जस्ट अ भेजो। सेकंड सर। ऊपर है फोटो, ऊपर है। एक सेकंड। अच्छा, फोटो ये रही, मिल गई, वो फोटो मिल गई, रुको। थैंक यू सर। तो ये आपका सॉल्यूशन है, लेट मी टेक इट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, राइट। यस सर। ठीक है, ओके। हाँ, अब आपका जो डाउट है वो है कि कौन सा ऑप्शन की डिस्कस कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर ए के लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आप ऑप्शन ए डिस्कस कर रहे हैं, चलो यस। इस ऑप्शन के लिए ये फोटो आपने भेजी है। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया P इम्प्लाइज Q और R, और बीटा। ये हो गया बीटा। हाँ, और ये और ये हो गया P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हो, नेगेशन P और Q और R, अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आप डी मॉर्गन लॉ लगाओगे, इसका नेगेशन, तो दैट विल बी, या सो या फाइन, इट इज फाइन। अरे यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ही नहीं यार, ये तो दोनों यही। और है ना, हाँ। ये तो दोनों और है मेरे भाई। सी, यहाँ पे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ए और बी और सी दोनों और हैं। दिस इज इक्वल हाँ। टू ए और बी और सी, दिस इज इक्वल टू ए और बी और सी। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तो कोई चीज ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है जब आपके पास में इस तरह की इक्वेशन हो, ए हैशटैग बी स्टार सी। जब आपके पास में दो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो पिक्चर में आती है, तब तब उस सिचुएशन के अंदर ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको अपन फोटो में लाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों और हैं, ये और ये, तो यहाँ पे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे और की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से हटके क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये नेगेशन P, नेगेशन P और Q और R, ये आपका बन गया अल्फा। ठीक है, बीटा अब तो इधर वही आओ, बनेगा। अब इधर भी सेम गलती है, हाँ। दोनों और है ना, ये भी और है, ये भी और है, सेम ऑपरेशन है, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना, दोनों सेम है, दोनों इक्वल हो गए। मैं बार बार कंक्लूड करता हूँ कि बाई केस यूज करूंगा, लेकिन ये गलती करके आता हूँ। जरूरी नहीं है ना कि बाई केस यूज करो, ये तो टूल्स हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर बाई केस अच्छा रहेगा, किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन अच्छा रहेगा। एक एक लेवल के बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में तो है ना दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ। दिमाग में थोड़ी आएगा कि बाई केस, वो तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा इसमें ये कर दूं। आज अगर मैं यस। कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं ये बैठ के ये नहीं सोचता कि अच्छा इसमें बाई केस लगाऊं कि इसमें ये लगाऊं। क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता, ऑटोमेटिकली दिमाग जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली अच्छा अच्छा ओके सीधा ये मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी गलती पता चल गई क्या? यस सर, ये मुझे पता तो चल गई थी, बट मैं ये जो आपने पिंक मार्क किया ना, ये मुझे नहीं पता था। कौन सा मार्क ये किया है मैंने? पिंक पिंक पिंक, ये अल्फा में। अल्फा के अंदर? हाँ ये तो सर। सेम ऑपरेशन है ना, ऑपरेटर सेम है। हाँ, ये तो इसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने?
हाँ सर, एसोसिएटिव पढ़ी है हमने पढ़ी है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे पी एंड क्यू एंड आर, हाँ, जो कंजंक्शन है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है, ठीक है, डिस्टिंक्शन भी associative। कंजंक्शन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एसोसिएटिव का मतलब सिंपल सा होता है कि या तो ऐसे कर लो या फिर उसको ऐसे कर लो। और जब एसोसिएटिव होता है कोई ऑपरेशन, जैसे ये कंजंक्शन है, ये एसोसिएटिव है, जब भी कोई ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है तो आपको इवन ब्रैकेट्स की भी जरूरत नहीं होती है। तो मतलब आप उसको सीधा ऐसे लिख लो चाहे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सेम है। यहाँ पे आपकी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगानी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब होती है जैसे, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फिर से चलो मैथ्स में चलते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर सोच के देखना, अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या यहाँ पे आप ये लगाने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे क्या एसोसिएटिव लगाओगे? कुछ नहीं, ये सिंपल करके खत्म। हाँ, इसे एसोसिएटिव कहते हैं, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। ठीक ये है। फिर अगर मेरे दिमाग से चलेंगे तो A+B+A+C होगा ये। हाँ, अरे वो तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर तो गलत हो गया ना भाई। हाँ सर। आप मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ऑपरेशन सेम है। यहाँ पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आएगा A+B+A+C। ये तो A+C, गलत हो गया, यहाँ तो 2A आ गया। वही। ये तो गलत है, ये पूरी चीज ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे A+B+C, या फिर जैसे A×B/B/C, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर उसको A×B/B/C या ऐसे कर लो, क्योंकि एडिशन भी एसोसिएटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। यस सर। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिव है, तो ऐसे कर लो। लेकिन अगर दोनों ऑपरेटर डिफरेंट है तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि A×B+C। अब यहाँ पे दोनों ऑपरेटर अलग हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप लगा सकते हो A×B+A×C, हाँ। है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई और डाउट अभिषेक? नो सर, गॉट दैट। ठीक है, आराम से थोड़ा सा ये प्रॉपर्टीज बार बार आएंगी आपकी, आगे ग्रुप थ्योरी में भी आएगी, सेट थ्योरी में भी आएगी, बुलियन अलजेब्रा में भी आएगी। ये प्रॉपर्टी इतनी बार आएंगी कि एक लेवल के बाद में ये सब बहुत इजी बन जाएगा। डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था सर, वो P&Q implies R होता है ना, तो P implies R और Q implies R, वो फॉर्मूले डिस्ट्रीब्यूटिव रटने थोड़ी हैं। अगर मेरे को खुद को वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे हो वो याद नहीं है, आप क्या बोल रहे हो कि पी एंड क्यू है। इंप्लाइज आर। P&Q implies R, हाँ। हाँ, तो इसको रटना थोड़ी है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सोल्व कर लो, बताओ ऑप्शन P क्या है। P implies R और Q implies R, मैंने ये देखा था, सॉरी, और जैसे मैं आप चाह यहाँ पे रहा था कि आर, अपना खुद का कुछ बनाएंगे हम। ऑप्शन ए, मान लो ऑप्शन ए दिया हुआ है पी इंप्लाइज आर एंड और और हाँ और सर, क्यू P। इंप्लाइज आर। हाँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप या तो बाई केस मेथड यूज कर लो, या फिर आप सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज कर लो। जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन मेथड अगर यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये आ ये जाएगा सर। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर, ये बन गया। ठीक है, हम्म। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेशन Q और R नेगेशन पी और आर और और नेगेशन Q और R। नेगेशन क्यू और आर। तो हाँ, ये सिंपली क्या बना, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू और आर। यस, दोनों सेम है, दोनों सेम है। दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन मेथड। इस सेम क्वेश्चन को आप बाई केस से भी सोल्व कर सकते हो, बाई केस मेथड से। जैसे इस स्टेटमेंट को मैं बोल देता हूँ एस, और इस स्टेटमेंट को मैं बोल देता हूँ ए। तो ये दो स्टेटमेंट है, तो दो केस बना लो। एक केस हो गया आर ट्रू, दूसरा केस हो गया आर द फॉल्स। फॉल्स। जब आर ट्रू है तो एस भी ट्रू हो गया, एनीथिंग इंप्लाइज ट्रू। जब आर ट्रू है तो ये जो हम्म। कंप्लीट स्टेटमेंट एस है ये ट्रू हो गया। वो तो ट्रू होना ही, हाँ। ठीक है, और ए भी ट्रू हो ये गया। भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू, ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। अब जब आर फॉल्स है तो उस सिचुएशन में एस क्या बन गया, आर फॉल्स है। याद रखना, एल्फा इंप्लाइज फॉल्स, क्या होता है वो, नॉट अल्फा। एल्फा इंप्लाइज फॉल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, और वो बन गया आपका नॉट एल्फा। तो यहाँ हाँ। पे जब आर फॉल्स है तो ये जो एस है ये बन जाएगा इसका नेगेशन, तो दैट विल बी पी बार और क्यू बार। नॉट पी और और नॉट ए क्यू। क्या बन जाएगा, ए भी बनेगा पी बार और क्यू बार। तो दोनों हम्म। बाई केस मेथड के अंदर देखो, बाई केस मेथड में इस केस में भी दोनों इक्वलेंट हैं, इस केस में भी दोनों इक्वलेंट है, दोनों केस में दोनों इक्वलेंट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वलेंट है। यस सर। ठीक है, और एंड कोई सर, मैं डाउट? यही वाला रिजल्ट उस वाले क्वेश्चन में यूज कर रहा था, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया। एक चीज मैं बता देता हूं
कि ये रिजल्ट याद नहीं रखने हैं। इतना तो मतलब मैं इतने सालों से प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे को भी ये रिजल्ट याद नहीं है। ये तो क्वेश्चन है, ये कोई रिजल्ट थोड़ी है। कोई रिजल्ट अगर है जिसको अपन को समझ के याद रखना है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पहले समझ लो फिर उनको याद भी रखो, वो काम आती हैं। तो ये चीजें थोड़ी, ये तो क्वेश्चंस हैं। अगर आप हर रिजल्ट को याद रखने में लगे तो फिर मतलब दिमाग जो है वो फिर स्टोरेज ही बन के रह जाएगा। दिमाग को एज अ सीपीयू यूज करना है, मेमोरी ओके, नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये गॉट ऐसे इस तरह के रिजल्ट याद नहीं रखने हैं। ये तो क्वेश्चंस हैं, ये तो वीकली क्विजेस के अंदर क्वेश्चंस डालने, ये तो मैंने शायद वीकली क्विज में ये क्वेश्चन डाला होगा मैंने। इट। हाँ सर, ये हाँ, शायद था। तो ये क्वेश्चंस हैं। ऐसे हर रिजल्ट को याद नहीं रखना, हर चीज को याद नहीं रखना। जो कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने समझ लिया फिर याद रख लिया, अब उन चीजों की हेल्प से आपको इतनी सारी चीजें सोल्व करनी है। अगर आपने ये सारी चीजें अगर याद रखी तब तो फिर अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, जैसे आप आपका मैं समझ गया, आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने ये रिजल्ट देखा, फिर इस रिजल्ट को आपने याद रख लिया, फिर अब इस रिजल्ट को आप किसी और क्वेश्चन में यूज कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। ठीक है, क्योंकि वो फिर मतलब एक तो आपके लिए वो अच्छा इसलिए नहीं, क्योंकि बेसिकली आप बहुत सारी चीजें याद रख रहे हो तो फिर वो हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे अभी हो गया। इस हाँ रिजल्ट को सर। याद रखने के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका। यस सर। अगर इस रिजल्ट को याद ही रखना होता तो मैं लेक्चर के अंदर मैं नोट बनवा देता कि नोट इसको याद रखो। यस सर। ठीक है, तो हर चीज याद रखने की नहीं होती है। ऐसे बहुत बार आप टेस्ट सीरीज के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वही वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। उसको आपने जो ऑलरेडी जो थोड़े बहुत जैसे इतने इतने आपने ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए हैं, इससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये नहीं करना है कि इस क्वेश्चन को भी आपको एज ए कॉन्सेप्ट एकदम रट लेना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, गॉट इट सर। और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ओके, Deepak is saying, sir, how to minimize silly mistake in the weekly test? Keep making silly mistakes in the weekly test. ओके, अभी से आपको सिली मिस्टेक के बारे में नहीं सोचना है, अभी से। ठीक है, बस आपने कोई सिली मिस्टेक आपने कर दी तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि मैं दोबारा इसको तो नहीं करूंगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर फॉल्स पूछा और आपने ट्रू लगा दिया, तो अगली बार से कम आपका दिमाग बोलेगा कि भाई देख ले कि क्या पूछा है। ठीक है दीपक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी आपने सिली मिस्टेक कर दी एक बार, उसको दोबारा रिपीट मत करो, बस बस इतना ही है। बाकी सिली मिस्टेक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, जितनी सिली मिस्टेक करनी है कर लो। हमें बस गेट एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करनी, यहां सिली मिस्टेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज मेक श्योर करो कि एक बार जो सिली मिस्टेक आपने कर दी, वन टाइप ऑफ सिली मिस्टेक वंस यू मेड, प्लीज डू नॉट रिपीट इट अगेन। Okay, your brain will automatically tell you last time you made this silly mistake, don't make it now. Okay, so don't worry, just keep making silly mistakes. Automatically your brain will automatically tell you that okay, you made this silly mistake in that test, now don't repeat it. Okay, so please do not worry, Deepak. Once you have made a silly mistake, then you are improving your learning, so don't worry. It is not something you should be worried about. Okay, Akhil is saying, sir, DMS going to be retaught newly this year? No. Akhil, did you watch the orientation session and the course launch session? All the students, many of your doubts are due to you not watching the orientation session and not watching the course launch session. Akhil, did you watch GATE CS 2026 orientation session? Did you watch it? Did you watch the GATE CS 2026 launch session? That is the reason you are asking this doubt. Okay. So please watch it. Can anyone provide the link from the YouTube? Can anyone provide the link of GATE CS 2026 orientation session? Yes, Gayatri has provided. See, this is the link. Akhil, to every student, I want to tell you, okay, please, this orientation session, watch it fully from the beginning till the end. Watch it fully at 2x speed. You can watch it on the YouTube. On YouTube, you can put Go Classes orientation session. GATE CS 2026 orientation session. Please watch it fully from the beginning till the end. Please watch it. You can watch at 2x speed, 2x. Okay, but make sure you watch it fully. All your doubts will clear. Prince is saying, sir, if X then Y unless Z, how to approach this? This unless keyword has been covered in the lectures. Did you watch it, Prince? In our propositional logic course, unless keyword, there is separate lecture for unless.
Did you watch it, Prince? In our Go classes course, in the propositional logic course, there is a separate video for unless keyword. Then what is the doubt? How to approach this? If X, then Y, unless Z. This is your doubt. If X, then Y, unless Z. You can approach it in two ways. Okay, let me tell you, both are equivalent. Either you can write it like this, or actually you can write it like this. Both will be equivalent. Both will be equivalent. This is actually a better way, but both will be equivalent. See, this is a better way. This is how you can write it. Now what it will be? It will be X implies Y. Unless means or. So or Z. Unless means or. Okay, you can replace unless with or. So this expression and this expression both will be same. If you do like this, that will also give you the same answer. X implies Y or Z. It will be X bar or Y or Z. Here also the same thing. It will be X bar or Y or Z. Both will give you the same result. Okay, but this is a better way. This is what but both are equivalent. Because both are equivalent, so you don't have to worry. Is this point clear? In real life, let me tell you, in real life, you think about it. Whenever we use this sentence, okay, for example, let's assume I'm saying, if you if you leave early, you will catch the train unless train is early, something like that. Okay, for example, let's see this type of statement. If I say, if you leave late, if you are late, you will miss the train unless train is late. Okay, this type of sentence we speak. Then basically, what is the main sentence here? Here the main sentence is this. This is what we want to say. Okay, here the main sentence, that is this one. We want to say that if you leave late, then you will miss the train. This is the main sentence. And then we are saying unless train is late. But remember, this sentence is actually equivalent to if X, then Y unless Z. Both are actually equivalent. This we have covered in the course. This point we have covered in the course, right? That both will be equivalent. This and this sentence, both will be equivalent. Both are equivalent. Okay. But for understanding purpose, this is a better way. This is better for understanding. Okay. Is this doubt clear? Prince, let me know. Is your doubt clear? Is there any pending doubt? Naman is saying, I have subscribed for course extension 3 days ago, but I had DM you. Naman, today it will be done. Okay, I have seen your message. Don't worry. Just before this session, I have seen your message. It will be done today. Naman, do not worry. Okay, today it will be done. Next, any other doubt, please tell me. Abhishek is saying, sir, some people say that complete the syllabus by August, some say by October, some say by December. Most of them say August, September max. What should be the nice approach? It doesn't, see the toppers. Some toppers will complete the syllabus by September. Some toppers will complete the syllabus by December. Some toppers will not even complete the syllabus. Abhishek, success does not come by algorithmic way. If you are thinking, okay, these things I have to do, these 10 or 20 things I have to do, I will become the successful. No, success does not come in an algorithmic way. There is no algorithm for success that, okay, if you follow this, then you will become successful. Okay, you can find toppers in every category. There are some toppers who do not even complete the syllabus. Okay, and there are many toppers who will complete the syllabus by December. There are some toppers who will complete the syllabus by August, September. Okay, all the type of people are there. The most important point, if you want to top the GATE exam, that is good understanding of concept, clear understanding of the concept. Okay, and also GATE PYQs, complete analysis of GATE PYQs, practice, weekly quiz, test series. These are the things. If you do them nicely, then you will become the topper. Even if you complete the syllabus by October, December, January, it does not matter. Okay, you will become the topper if your understanding of concepts is good, and if you have done enough practice, like GATE PYQs you have done in a complete analysis way without by hearting. Okay, then you will become the topper. So please do not worry about the things which are, I can say, which are irrelevant to the success. Okay, you just keep going. You put your best effort every day.
and you understand the concepts. Understanding the concepts is most important. Let me see if there is any other doubt. If any doubt is pending, can you send it again? Anyone whose doubt is pending, can you send it again? Hello, Sarad? Sarad, you can speak. हेलो गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. हाँ सर माय डाउट इज कि मैं अभी सर सी प्रोग्रामिंग एंड डीएस कर रहा हूँ, तो डीएम सर कैसे मतलब क्या करूँ डीएम का? आप अभी डीएम का ले रहे हैं लेक्चर? हाँ, और अब आप सी प्रोग्रामिंग और डीएस कर रहे हो? यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप अपने डीएम के सॉरी अपने सीडीएस के डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर ओके। सर मुझे ठीक है, पता नहीं चलता कि कब ये लाइव क्लासेस होगी कब, तो इसका ये कहाँ पता चलेगा सर? ये सारी चीजें एडवांस के अंदर जैसे हम जैसे अभी डीएम का शेड्यूल चल रहा है, जो हमारा जो हाँ डेली शेड्यूल हम देते हैं उसमें जैसे डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स चल रहा है, यस तो सर। अभी जो लाइव सेशंस होंगे वो उनके लिए होंगे। जब सीडीएस एल्गो चलेगा तो लाइव सेशंस जो होंगे वो सीडीएस एल्गो के लिए होंगे। आप ओके खुद का जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, आप अपना जो सब्जेक्ट सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो उसको आप कर सकते हो फॉलो। हमारा जो यस। कोर्स है सीडीएस वो सारे रिकॉर्डेड है, प्री रिकॉर्डेड है, उनको देखो, लेक्चर देखो। कोई भी हाँ डाउट वो कहीं देख पर भी लिया आता सर। है, कोई भी डाउट कहीं पर भी आता है तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ओके, अच्छा कोई भी सर, और डाउट ये आता मुझे है। लगता है कि सर जैसे रिकॉल करने में, रिकॉल करने का क्या तरीका होना चाहिए सर? जैसे सीडीएस मैंने पढ़ ली है, हाँ, तो रिवीजन टाइम मुझे लगता है कि नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि 2x पे वीडियो देख लो। नहीं तो नहीं, सर दोबारा कैसे? वीडियो नहीं देखना है ना ना, वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक अच्छा है, अच्छा। आज अगर मैं कोई एनपीटीएल का कोर्स देख रहा हूँ और मैं अगर उसको 2 महीने बाद दोबारा उस कोर्स को देखूं रिवीजन करने के लिए, तो भाई वो तो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वो हाँ सेम चीज हाँ। आपके लिए भी है। आप आराम से गो क्लासेस का कोर्स फॉलो करो। ठीक है, एक लेक्चर आपने देख लिया तो उसके या तो नोट्स बना लो। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो जो टॉपर के हैंड रिटन नोट्स हमने प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी उनके प्रिंट आउट लेके ऐसे हर पेज के बाद में एक ब्लैंक पेज रखो जिसमें आप अपनी कोई चीज लिख रहे हो। ठीक है, ओके और ओके। हाँ, समझ रहे हो? तो बेसिकली या तो आप खुद के नोट्स बनाओ या फिर आप टॉपर्स के अनोटेटेड नोट्स या टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स के प्रिंट आउट लेके वहां पे आप खुद की तरफ से कुछ एडिट कर लो, कुछ मॉडिफिकेशन कर लो। कोई नई चीज आपको लिख रहा है कि यार मुझे ये लिखना चाहिए, लिख लो। कोई कोई गलत चीज है, अगर मान लो उसके नोट्स में जो टॉपर के नोट्स हैं उसमें अगर कोई चीज गलती से गलत लिखी गई है तो उसको करेक्ट कर लो। तो बात ये है कि एक लेक्चर को आपको ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद में रिवीजन के लिए दोबारा देखना है। अगर आपको दोबारा रिवीजन के लिए कोई लेक्चर देखना है तो वो समरी लेक्चर होंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डीबीएमएस और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, इनके जो समरी लेक्चर्स हैं वो आप रिवीजन के लिए आप दोबारा भी देख सकते हो, 2x की स्पीड पे ओके आप ओके। देख सकते हो। ठीक है, ओके लेकिन कोशिश करनी है आपको कि जो लेक्चर आपने एक बार देख लिया उसको आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी पड़ सकती है, ऐसा ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वो चीज़ आप एकदम ही भूल गए हो तो हो सकता है लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत पड़ जाए। या फिर कभी हो सकता है कि वो लेक्चर थोड़ा हार्ड था, वो टॉपिक थोड़ा हार्ड था, तो आपको दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसा ऐसा हर चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक के लिए नहीं होना चाहिए कि आप पूरा कोर्स या आप 2x की स्पीड में दोबारा दोबारा देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। रिवीजन के लिए अपने नोट्स यूज करो, इसीलिए तो लोग नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिखने का पर्पज ओके है ओके कि सर। आप उसको रिवीजन के टाइम पे यूज कर सको और जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, 2 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। खुद के जो आप सर ये शॉर्ट नोट्स वीडियो बना सकते हो। जो सर ये वीडियो अभी हम लोगों रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग में जाएगी, अवेलेबल रहेगी कि ये डिलीट हो जाएगी? ये जो डाउट सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है ये भी सारी अवेलेबल रहेंगी। मैं एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर जितने भी डाउट सेशन हो रहे हैं ना, हर टॉपिक के जो डाउट सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। लेकिन क्योंकि ये जो डाउट सेशन हो रहे हैं इनके अंदर मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो फ्यूचर का जो एस्पिरेंट है, मतलब आज से 2 महीने बाद जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए हो सकता है ये डाउट सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि मैं इसमें आपके डाउट ले रहा हूँ तो उसके लिए आपका डाउट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, राइट? ठीक है, हाँ। तो ये जो पूरे जो डाउट सेशन है इनको हम क्या करने वाले हैं, एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट बना देंगे, उसके अंदर सारे डाउट सेशंस आपके रहेंगे। अगर किसी की देखने की इच्छा है तो देख सकता है, अगर कोई पुराने डाउट सेशन अगर नहीं देखना चाहता तो स्किप कर सकता है। वो आप अपने ऊपर आपके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरे लिए यूजफुल होगा नहीं होगा। आपको वो डिसाइड करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, ये जो डाउट सेशन अभी हम ले रहे हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मैं यूट्यूब की एक ऐप सिंगल पर? प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में अच्छा। सारे डाउट सेशन रहेंगे। ओके, और वो ऐप पर होगी? वो जो प्लेलिस्ट होगी उसका लिंक मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में दे दूंगा, और ऐप के ऊपर कोर्स में भी नीचे कहीं पे मैं ऐड कर दूंगा कि ये डाउट सेशंस की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर। हाँ,
बाकी अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, उसको आप बुक मार्क कर लेना, उस प्लेलिस्ट को। अगर आपको डाउट सेशन की प्लेलिस्ट जो है जब मैं शेयर करूं तो उसको आप बुक मार्क कर लेना। ओके ओके, थैंक यू सर। कोई और डाउट किसी को? सर ये पूछना था कि 1 ईयर इज सफिशियंट ना, टॉप रैंक जी। टॉप आईआईटी में जाने के लिए? यस यस, डेफिनेटली इट इज सफिशिएंट। क्योंकि सर ओके, मैं अच्छे से। पिछले भी रैंक लाया था बट भूल गया हूँ वो सिलेबस पूरा। कोई बात नहीं, एक साल, 1 ईयर इज सफिशिएंट। ओके, अच्छे से तैयारी करो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्सेप्ट कवर करो, कोर्स फॉलो करो। मेनली मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि आप तो कोर्स फॉलो करो, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर आप किसी से भी पूछोगे, भाई हमारा कोर्स जो है उसके अंदर सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कवर्ड है, प्रूफ के साथ कवर्ड है, अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर्ड है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं लेक्चर्स के अंदर, गेट पीवाईक्यूज हैं। जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं उनकी समरी कोर्स भी, उनकी समरी हाँ सर, लेक्चर्स मैंने भी देखा है अवेलेबल है। आपका डीबीएमएस मैंने पढ़ा था पिछले साल। हम्म आपसे तो मेरी व्हाट्सएप पे भी बात होती रही काफी। हम्म। तो आपका कोर्स सर बहुत अच्छा है, मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत मजा आया है सर पढ़ने में। बस फॉलो करो, ठीक है? एक साल का टाइम कम नहीं होता है। अगर आपने बिना किसी मतलब टाइम वेस्ट के, अगर आप अपना बेस्ट अगर एक साल आपने दे दिया, तो आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर रहे हो। गेट एग्जाम जो है वो एक मतलब है, वो एक अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं अगर आप गेट एग्जाम टॉप करते हो तो। और सर उसके मुझे लिए बस आपके साथ इंटरव्यू करना है, बस यही इच्छा है मेरी। बिल्कुल, मैं तो खुद मतलब सारे स्टूडेंट्स जितने भी ये अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, गेट 2026 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम तो मतलब एकदम आप एकदम टॉप रैंक लेके आओ, हमें तो प्राउड होगा कि आप लोगों का इंटरव्यू हम खुद आपको बोलेंगे कि चलो इंटरव्यू करते हैं, ठीक है? हाँ सर, आप मेरे तो से 2 साल सीनियर थे कोचिंग में, तो मुझे याद है सर आपके बारे में। काफी ओके कुछ ओके टीचर्स लोग आपका एग्जाम्पल दिया करते थे। ओके। तो सरद आराम से प्रिपरेशन करो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके ओके सरद। सो अखिल इज आस्किंग, सर एनी सब्जेक्ट गोइंग टू बी टॉट लाइव न्यूली? अखिल, आप एक बार ओरिएंटेशन सेशन तो देख लो, उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। जो चीज़ें मैंने ओरिएंटेशन सेशन में, कोर्स लॉन्च के सेशन में ऑलरेडी कवर कर दी हैं, उनको दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने का क्या बेनिफिट है? ठीक है, एक बार आप गेट सीएससी का ओरिएंटेशन सेशन एक बार देख लो, यूट्यूब के ऊपर बस इतना सा लिख दो, गो गो क्लासेस ओरिएंटेशन सेशन। उसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है। जो हमने कोर्स लॉन्च किया था गेट 2026 कंप्यूटर साइंस का, जो कोर्स लॉन्च सेशन है वो देख सकते हो, एक बार उसको देख लो। पूरे साल के लिए बस एक बार देखना है, उसको बार बार नहीं देखना। गेट सीएससी 2026 कोर्स लॉन्च सेशन वो देख लो, गेट सीएससी 2026 ओरिएंटेशन सेशन। ये दो सेशन, इन दो सेशन के अंदर मैंने पूरा रोड मैप डिस्कस किया है। क्या क्या चीज़ें नई पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे फॉलो करना है, क्या रोड मैप है, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। एक बार उनको देख तो लो। Akhil is saying, Sir, I am in third year. If I am not able to clear GATE exam next year, then it is a good idea to take a drop year. Why are you even thinking about it right now? This is something that you should think after the GATE exam. After GATE 2026 exam, you can talk to me, you can send a message to me in the personal chat, and we will talk over call. I will call you, okay, and we will talk over call that what we should do now. At this moment, why are you thinking, if I do not clear the GATE exam, then what will happen? First you clear the GATE exam, first you crack the GATE exam. Your target should be to top the GATE exam. Once the GATE exam is over, okay, the next day you can call me, okay, you can send me a message on the WhatsApp, on the Telegram, you can send me a message, we will talk over call, okay. For this moment I can say, till the GATE exam, your complete focus, your complete energy, your complete focus, all your thoughts, they must be to top the GATE exam. You should top GATE 2026, okay. The next day you can talk to me. Right now don't think that, okay, if I am not able to clear GATE 2026, then what should I do? Okay, those things you should not discuss right now. Deepak, yes, you can make your own short notes. That is actually very good. You also have made long notes. Now you can make short notes. Yes, of course. It is good. Deepak, keep going. Sanket is asking, सर मैं करण अग्रवाल के डीएम के नोट्स प्रिंट आउट करके उसमें एडिट कर रहा हूँ लेक्चर देखते टाइम। क्या मैं ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो करूँ या सिर्फ डीएम के लिए? एज थ्योरी सब्जेक्ट के लिए अपने वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है ज़्यादा, या खुद के नोट्स बना पाऊँ? देखो, ये आप सब सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो संकेत। आप सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर सकते हो कि टॉपर के जो
हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो आप प्रिंट आउट करके उनके आगे ब्लैंक पेज रखो, एक या दो ब्लैंक पेज, हर पेज के बाद में एक या दो ब्लैंक पेज लगा दो, ठीक है, जहां पे आप अपनी तरफ से कुछ लिख रहे हो, है ना। जो चीज़ ऑलरेडी टॉपर ने ऑलरेडी लिखी हुई है, कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है, तो उसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, कुछ अपनी तरफ से करेक्शन करना चाहो तो करेक्शन कर लो, कुछ आप अपनी तरफ से हटाना चाहो कि यार ये चीज़ तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है तो हटा दो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास में आप फुल टाइम अगर तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट अगर फुल टाइम तैयारी कर रहा है, मतलब कि कॉलेज के साथ नहीं कर रहा या जॉब के साथ नहीं कर रहा, फुल टाइम तैयारी कर रहा है, तो वो अपने खुद के भी नोट्स बना सकता है। आपके पास इनफ टाइम है, आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यार खुद के नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, कुछ भी अगर इश्यू आ रहा है, मैं कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो आप टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट आउट करके और उनमें खुद के अपनी तरफ से उसके मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है। हर पेज के बाद में एक दो एम्प्टी पेज रखो, ब्लैंक पेज रखो, जहां पे आप अपनी तरफ से कोई चीज लिख सकते हो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट्स को समझना। आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आप गेट के पीवाई क्यू सॉल्व करो, कंप्लीट एनालिसिस के साथ सॉल्व करो, वीकली क्विज़ेस दो, टेस्ट सीरीज दो, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे, यू विल बिकम द टॉपर। कीप गोइंग। See, this session is regarding the discrete mathematics propositional logic doubts. I will keep another session. Okay, I see many students are asking many doubts. Okay, let me keep another session for these type of doubts which are not technical doubts. Okay, I can see many students are asking doubts which are non-technical, like how to do revision, how to write notes and this that. Okay, so I will take a separate session. In that session we will discuss all these doubts. At this moment, anyone has any doubt from the propositional logic? किसी का कोई प्रोपोजिशनल लॉजिक का डाउट अभी पेंडिंग है क्या? अभी पूरी जो चैट है उसके अंदर पीछे जाके मैं देखूंगा तो शायद पता नहीं चलेगा। एट दिस मोमेंट किसी को प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कुछ डाउट है, कोई पेंडिंग डाउट है, प्लीज सेंड इट टू मी राइट नाउ एट दिस मोमेंट। आई विल टेक द डाउट्स ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक। I will take a general session. In the general session, you can ask all your general doubts. Maybe multiple general sessions I will take. Okay, don't worry. Maybe tomorrow I will take one general session. Tomorrow you can ask all your doubts, which are the non-technical general doubts. But at this moment, anyone has any pending doubt in the proposition logic? Please tell me. किसी का कोई प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर पेंडिंग डाउट है, किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, कहीं पर भी कुछ भी प्रोपोजिशन लॉजिक से रिलेटेड, क्या किसी का कोई पेंडिंग डाउट है? Okay, I don't see any propositional logic related doubt. Shubham, send me message on the Telegram. Shubham Sinha, please send me a message on the Telegram in the personal chat. Jayant, please send a message on the Telegram in the personal chat. मेरे पर्सनल टेलीग्राम का लिंक, मेरा यूजर नेम है दीपक पूनिया _ गो क्लासेस। ओके, ये मेरा यूजर नेम है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक सेकंड, दीपक पूनिया _ गो क्लासेस, ठीक है, यही है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। दीपक पुनिया _ गो क्लासेस, यस, ये है यूजर नेम मेरा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। दिस इज माय यूजर नेम, दीपक पुनिया _ गो क्लासेस। स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, दीपक पुनिया _ गो क्लासेस, ठीक है। दिस इज माय टेलीग्राम यूजर नेम।
Sarad, is your doubt clear? You are raising hand, but I think your doubts are clear. You can unraise your hand if your doubts are clear. Sarad? Okay. Anyone has any doubt, you can raise your hand. Any doubt in the any technical doubt in the propositional logic? Sanket is asking, sir, the inference symbol x inverse y means x implies y is tautology बोल सकते हैं? Yes, बिल्कुल. यही तो है ना, एक लेक्चर है ना इन्फ्रेंस सिंबल के ऊपर. और सर व्हेन वी आर प्रूविंग इफ समथिंग इज अ टोटोलॉजी और नॉट, इतने सारे मेथड्स हैं, कौन सा चूज करूं? जस्ट प्रैक्टिस. जो बाई केस मेथड उसकी प्रैक्टिस कर लो, सिंप्लीफिकेशन मेथड की प्रैक्टिस कर लो. जो भी दो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बाई केस मेथड है उसकी प्रैक्टिस, और सिंप्लीफिकेशन मेथड, बस ये दो मेथड, बस बात खत्म. ठीक है संकेत, इज दिस क्लियर? इन्फ्रेंस सिंबल एक्स इनवर्स वाई, उसका मतलब होता है कि एक्स इंप्लाइज वाई इज टोटोलॉजी. दैट इज करेक्ट. ओके संकेत, दैट इज करेक्ट. X inverse Y, that means X implies Y is a tautology. This is correct. Second thing, to prove something is tautology or not, you can either use the by case method or you can use the simplification method. Both are very good method. Okay, just do the practice of both the method. Heath is saying, sir, मैं आपको कभी भी टेक्निकल और अनटेक्निकल डाउट पूछ सकता हूं. अगर आपको कोई टेक्निकल डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर टेक्निकल डाउट है, तो आप पहले टेलीग्राम, जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसको प्रीफर करो. देखो इंडिविजुअली अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो वो आप, हो सकता है वो मिस हो जाए, क्योंकि इंडिविजुअली अलग से अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज अलग से आ जाते हैं, 50 100 200 मैसेज एक एक दिन में आ जाते हैं. तो इसलिए पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप. जो प्राइवेट टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर आप एक बार अपना डाउट पूछो, मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे सोल्व हो जाएगा. हमारे जो टीम है, मैं खुद भी चेक करता हूं, हमारी टीम भी आपके आपके डाउट मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे सोल्व हो जाएंगे. फिर भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. ठीक है. ओके हेत. अभिषेक इज सेइंग, सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक्सेप्ट ग्राफ थ्योरी कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम फॉर पीजीडब्ल्यू एग्जाम. सो फॉर पीजीडब्ल्यू एग्जाम, अभिषेक, डिड यू वॉच द पीजीडब्ल्यू कोर्स लॉन्च सेशन? Abhishek, I took one PGW course launch session. Did you watch it on the YouTube? In that, I have told how to prepare discrete mathematics for PGW. Okay, you can watch the summary course of the discrete mathematics for PGW because you are preparing for the IIIT Hyderabad PGW exam. So for that, you can watch discrete mathematics summary course. Graph theory summary is also there. You don't have to watch main course for the PGW exam. Do not watch discrete mathematics main course. Okay, do not watch it. Just watch discrete mathematics summary course and gate PYQ. There is a course, right? Watch it. There you have graph theory summary is there, group theory summary is there, set theory summary is there, function summary, propositional logic summary, first order logic summary. All these summary lectures are already available there. Okay, Abhishek, is that clear? Vijay is saying, sir, today can we take help of AI chat GPT? Please don't do that. Okay, because many times it will give you the wrong answer and you will be thinking it is the correct answer. Chat GPT is useful only for those people who already know that it is the correct answer. If you already know what the answer given that is the correct answer, then it is helpful for you. Are you getting my point? If you are using this to learn the concepts, if you are using chat gpt to for learning the concepts, then many times it will give you the wrong answer, it will give you the wrong explanation, and then you will be thinking it is the correct explanation. You will be making misconceptions in your mind. Just follow our course. You don't have to use chat gpt for learning, for your gate preparation. Okay, chat gpt is useful for those people. If you are a gate aspirant and you are using chat gpt, then it is useful only when you already know that the explanation given by chat gpt is already correct. Okay, so please don't use it to learn new concepts of the gate exam, of the gate cs. Deepak is saying, sir, I'm non-cs student. Everyone said that discrete mathematics is very tough, but after attending your classes I found it very easy. So thank you. I am very confident now. Thank you, Deepak. Okay. Any technical doubt? Sanket, your technical doubt is clear now. Any other technical doubt in the propositional logic? I think there is no other technical doubt in the propositional logic right now. Okay.
Okay, thank you everyone. So we will have a general session where I can take all your doubts. Okay, many students are asking some general doubts, some non-technical doubts. I will take another dedicated session only for the general doubts. Okay, so for now I think this session we can terminate. Okay. Okay, thank you everyone. Jayant is saying, sir, my doubt. What is your doubt, Jayant? Do you have doubt in the propositional logic? Jayant, in the propositional logic, do you have doubt? Yes. Hello, Jayant, you can speak now. Hello, Jayant. Hello, sir. Yes, Jayant. Good evening, sir. Yes. Sir, I have given the GATE 2025 with the full preparations. I Mm-hmm. was Go classes enrolled student. I am getting only 50 marks. Mm-hmm. I was dropper and I had followed the test series also, but I am due to some silly mistakes in the exam. I got very less marks. 50 marks I in the am set 1 or set 2? set one, sir. Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, what should I do now? So, Jayant, you can send me a message on the Telegram. We can discuss it. Okay. So, because this is a non-technical doubt, not related to the proposition logic. Okay. So please send me a message right now on the Telegram. I have already given my Telegram username. So, can you please ping me there and we can discuss about it. Okay. Sir, how to reduce the silly mistakes in the exam pressure time and when in the exam speed with accuracy, how to maintain this? If you are preparing for GATE 2026, there is 1 year in front of you. Okay. Almost for the next 1 year, you can improve all these things through weekly quizzes, through test series. You can improve all these things. You can improve your silly mistakes. You can reduce your silly mistakes regularly. There is 1 year of practice ahead of you. Okay, so a lot of tests, a lot of weekly quizzes will be there. Whatever silly mistake you are making, please do not repeat it. You can make new silly mistakes, no problem. Okay, but whatever silly mistake you are making, let's assume the same type of silly mistake you have made 2 or 3 times, then please control it. Okay, the next time your brain will tell you, okay, don't make this silly mistake. You have already made this silly mistake. Okay, so this is the best way to reduce the silly mistake. Periodically it will happen. Okay, consistently, when you give a test, weekly quizzes, test series and weekly quizzes, when you attempt, then consistent, I can say, slowly it will happen that your silly mistakes will reduce. And the second thing, uh, accuracy and speed in the exam, that also, that does not come in single day. In single day you cannot suddenly become very accurate and very high speed. So it will come slowly. When you attempt the weekly quizzes, when you attempt the test series, there will be around 100 weekly quizzes. There will be more than 100 tests. Almost, you can see, almost 200 tests you will be attempting in the next 1 year. Okay, that is I can say that is a big number. All your silly mistakes, all your time management issues, all your speed issues, all will be gone. Okay, so slowly, just trust the process. Okay, there is a process. Regularly you just keep going, you just keep improving, and then in the GATE 2026 you will top the GATE 2026. Okay, so there is a process. You have to put your efforts for the next 1 year. Suddenly in single day it cannot happen. Okay, like you are asking me, sir, what to do. I cannot tell you something that will suddenly in single day, that will make you, that will reduce your silly mistakes to zero. It cannot happen. Okay, it is a process. You need to follow the process. You need to put your best efforts every day. Okay, so please send me a message on the Telegram. We can discuss about your preparation for the next 1 year. Okay, Jayant? Anyone has any other doubt? Okay, thank you everyone. If anyone has any doubt, please send me a message on the Telegram. We can discuss about it, or I will take a general session where we can discuss all your doubts. Okay. Okay, thank you everyone.